Oh shit, here we go again. Biram Kazi. Another day, another loss for Pakistan in the test match. 3 back-to-back losses against Bangladesh. यही दिन देखने को रह गए थे. कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ और शो की शुरुआत करते हैं by congratulating the Tigers. Tigers were amazing. Yeah, they मजा आ गया. completely outplayed Pakistan to record a sensational win in this Mirpur test. And I mean, pound for pound, they are a better team than Pakistan in Asian conditions. इसमें तो कोई शक ही नहीं. हमने प्रीव्यू में भी एशियन कंडीशंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एशिया में खेलती हैं ये दोनों. Exactly. हमारे पास कोई सैंपल साइज नहीं है, वरना there is no way to tell कि सेना के अंदर बेहतर कौन होगी टीम. Bowling attack तो उनका बेहतर है. Very good chance that Bangladesh would be better than Pakistan as a test outfit across all conditions, 100%, right? 100%. Yeah, but many congratulations to our Bangladeshi watchers. काफी हैं. हाँ, शाताइफ अहमद तोयफ और भी हैं. और भी काफी हैं यार. है. तोयफ तो याद रहता है ना, क्योंकि वो इतना हमसे बातें करता रहता है. But there are plenty of you guys and you. मोहित भी है, I think. मोहित भी है. Yeah. Soak this moment in. You thoroughly deserve it. आपकी टीम ने बहुत शानदार खेला है. Completely outplayed Pakistan, man. From day 1 to day 5. Yeah. बीच में थोड़े से फेसेस आए हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने second day especially. Yeah. जहाँ पाकिस्तान ने punch back किया है, लेकिन you held your nerve and you were the better team by far. Yeah. By far. I mean, Bangladesh have won this test match by a margin of 104 runs. That is a lot. That is quite a comprehensive victory. By declaring on the last day. Yeah, I mean, look, they bowled Pakistan out for 163 in the 4th innings within 2 sessions. Yes. To win this test. Salman Ali Agha ने press conference में बात की थी. Yeah, बातें लगा दी थी. नहीं बातें तुम बताओ, फिर मैं आगे से उनकी मेंटालिटी बताता हूँ ना. Yeah. Salman Ali Agha ने कहा था कि if Bangladesh are brave tomorrow, they will come out and hit and give us a target of 260 odd in 70 overs. देखो, bravery भी दिखा दी, दिलेरी भी दिखा दी. आप लोगों ने नहीं दिखाई ना. और ऊपर से माइंडसेट ये है कि ये नहीं बोलना कि we'll come out tomorrow and take their 10 wickets. नहीं. माइंडसेट ये है कि वो ये करेंगे नहीं. I don't think they will be brave enough. Are you brave enough to take their wickets though? अब अली भाई ने कहा ना, अली द कॉमन मैन ने उनका ट्वीट में पढ़ा था, उन्होंने कहा ब्रेवरी का ओनर्स भी दूसरी टीम पे आ गए भाई. ठीक है. हाँ, हम क्या करें? You're gonna have to eat your words. सलमान अली आगा, मुंह की खानी पड़ी है आपको. How can you expect Bangladesh to not be brave enough in the era of the World Test Championship? Everyone knew कि वो आकर तेज खेलेंगे. Obviously. वो तो पिछले दिन भी तेज खेलना शुरू कर दिया, तो बारिश ने थोड़े डिले कर दिए. डिले कर दिए. ये तो फर्स्ट सेशन लॉस. Yeah. This was not a 5-day test ultimately had the rain never come around, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान ने किसी तरह डे 4 पे ही हार जाना था अगर बारिश ना होती. डे 5 फर्स्ट सेशन में हार चुके होते. फर्स्ट सेशन में उड़ गए होते. And you know, Bangladesh managed to do both of those things. They were brave. I know कि declaration तब आई है जब 9 wickets down थे, मगर आई तो सही. लेकिन वो मारने के लिए ही 9 विकेटें एकदम गिरी थी ना उनकी. हाँ, exactly. वो मारते ही आउट हुए. ठीक है. और दूसरी बात ये कि आई थिंक शंटो ने रियलाइज कर लिया होगा कि ये मैं अब करूंगा. उसने अब तो मैं करूंगा. आओ ना. अब मैं तुम्हें 70 से ज्यादा ओवर दूंगा इन थियरी, एंड यू विल गेट इट 260 ऑड का टारगेट, जो कि सलमान अली आगा ने जो मांगा था मिला. पाकिस्तान couldn't deliver. And you know, if your team, हमने पहले भी कहा था कि we are not confident with Pakistan's batting at all in the 3rd and 4th innings. Right? ये भी कहा था कि there are more chances of Bangladesh doing a 2-0 than Pakistan doing a 2-0. Absolutely. आप जाकर preview देखें. Saad and I, we predicted a scoreline of 1-1 and we both said कि there are more chances of Bangladesh sweeping the series than Pakistan. क्योंकि they look like a more complete team. They are a more complete team. They were the better team on paper as well. Yes. And they played the better team judging by the conditions as well. And they are the team more likely to take 20 wickets in a test. ये भी तो है. जीतते तो आप इस तरह टेस्ट मैच. किस तरह जीते हैं ये टेस्ट मैच? 20 विकेट लेके. हाँ. पाकिस्तान ने 19 ली, मगर वो तो उसने बस की है ना हरकत वहां पे. उसने कहा कि तुमने कहा है कि we're not brave enough to declare. मैं भी एंड में डिक्लेरेशन करके छोड़ूंगा. And I love that, you know. I honestly love the body language as well. Bangladesh was switched on. They were pumped up. वो छलांगे मारा था शंटो. ऐसे ही. ठीक है. और मुझे मजा आ रहा था देख के. With his mustache. Yeah, they are such an entertaining team to watch. वैसे सोचा जाए तो मुझे मजा आता है बांग्लादेशी क्रिकेट देखने का. And they've got the wood over Pakistan. Apart from the openers, the rest of the team is really good. Yeah. I mean, this is a team, Bangladesh, who काफी लोग कहते हैं कि they haven't evolved at the rate they should have evolved at. वो बात ठीक है. ठीक है. I agree. सही है. अफगानिस्तान की राइज जरा ज्यादा तेज थी. Steep थी. Yeah. Bangladesh's rise was not as steep. But look, in 14 test matches prior to that test series in Pakistan, which Bangladesh won 2-0, right? Pakistan had won 12 tests and there were 2 draws. Bangladesh had never defeated Pakistan in a test match up until late 2024. ठीक है. 2 मैचेस वहां पे जीते और फिर अब ये जीते. 3 straight wins against Pakistan.
उससे पहले वो कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीते वैसे Yeah. पाकिस्तान के And against. more- They did come close. You remember Yeah. that in the innings? The NZ innings, Yeah. obviously, Multan, 2003, I want to Yeah. say. ठीक है? But, you know, the Tigers having won 3 tests on the bounce, specifically versus Shan Masood's boys, does show you that now there's a bit of a gulf in the test teams. शान मसूद का रिकॉर्ड भी बता दो. Shan Masood is also making unwanted records, right? Yeah. He's captained Pakistan in 15 test matches and now he's lost 11 of them. Pakistan have also lost 6 away tests on the bounce. Balki the last time they won an away test was when we started this podcast. Yes, sir. The Sri Lanka series. बड़ा मजा आया था हमें. अब मैंने कहा पता नहीं कहाँ जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम. अगर वो सीरीज पाकिस्तान हार जाता क्या प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट जिंदा होता? नहीं होता ही या बल्कि तब ज्यादा व्यूज आते. ठीक है, but yeah, so 11 losses out of 15 for Shan in test cricket. It's the joint second most for a Pakistan captain in history. Only Misbah has more losses under his name and he captained Pakistan in 56 tests. तो मतलब Shout out to Daniel Rasool. ये stats उसने दिए. ठीक है? thanks Daniel. Thanks, Danny boy. And I mean, it really will mount the pressure. Not just the fact that there's 11 losses in 15 tests, but he scored 11 runs in the test. He scored 11 runs in the test. और सिर्फ शान मसूद की यहाँ पे बात नहीं है, मतलब obviously he is a major player in this कि पाकिस्तान की जो performances है उसके अलावा I think all of the senior players in this team have failed to step up here. Yeah, I mean, look, this test in particular, it was the young guns, the debutants in particular, जो आकर, थोड़ी बहुत जो बची कुछ इज्जत है उन लोगों ने बचाई है, वरना the seniors completely let Pakistan down. And Pakistan, Saadi, have now become the first team after Zimbabwe to lose 3 consecutive test matches to Bangladesh. Yes. Also, this is the first time Bangladesh has ever defeated Pakistan in a test match on home soil. बहुत records हैं, arcs हैं. पहले clean sweep मारा, एक और वैसे clean sweep आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. अच्छा, unless बारिश हो जाए. But इसाम भाई का कमेंट पढ़ा था? नहीं. He said that they might move that second test away from Sylhet. ना करो. Yeah, because they're afraid of the rain. और इधर ही कर लो. And I'd love that. मीरपुर में ही कर लो. मसला पता है क्या है? पिच किस तरह की रोटेट होगी, ये सारा कुछ. वो तो कर लेंगे. छठोग्राम ले जाओ. छठोग्राम में ज्यादा मुश्किल होगा. अब यहीं पे है. यहीं पे कर लो क्यूरेट. Yeah. जो भी है, आई डोंट नो अब कि वो करते हैं ये या नहीं करते, लेकिन अगर टेस्ट मैच वो पूरा करवाना चाह रहे हैं और कंडीशंस इधर बेहतर हैं तो फिर आई थिंक वो मीरपुर में ही कर ले. बहराम, ये अपनी कॉफी ले लो, वो काफी देर से खड़ा हुआ है और मैं उसे काफी ज्यादा टाइम भी दे रहा हूँ कि यार कॉफी दे दे, लेकिन काशी नहीं हिल रहा. ये भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह हो गया, जैसे उनके पाँव नहीं हिलते, काशी के भी पाँव नहीं हिल रहे. Yeah. I mean, the strongest adhesives money can buy, they are the ones that hold Pakistan cricket back, right? Or KBTL, Yeah. as we call it. Shout out to Kashi Bean and Tea Leaf, best coffee in Islamabad. कभी अगर आप हमारे मेहमान बनकर आओ ना यहाँ पे, तो आपको पिलाएंगे काशिफ की कॉफी. यार बड़ी कोई जबरदस्त है. देख काशिफ इतनी, काशिफ ही चला गया. काशिफ चला गया ब्रो. कर मैच पे वापस आते. अच्छा यार, शान मसूद की बात करते तो कप्तानी की कुछ बातें कर ले. I want to come to the toss later. Okay. सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यार in the third innings Pakistan needed to roll Bangladesh over quickly. Yeah. The Pacers aren't taking any wickets after the first 2. और नोमान अली को उसने ओवर ही नहीं दिया. Nomi Payand, granted, I do agree कि a slow left armer bowling to 2 lefties is not ideal. But matchups are far more relevant in white ball cricket than they are in red ball. Especially जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतने मैचेस आपके ज्यादा मैटर करेंगे. Exactly. और यार खैर वनडे में भी आप डोमिनेट कर जाते हो ना. कुछ फेजेस होते हैं, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी होती है बॉलर्स के लिए विकेट निकालने के लिए. अब ये टेस्ट क्रिकेट है, द बॉल इज टर्निंग अ बिट नाउ. ठीक है यार, 2 लेफ्टी लगे हुए, नोमी पॉइंट को लाओ, शॉर्ट लेग लगाओ. निकाल भी दिया था चांस मोमिनल का. शॉर्ट लेग लगाओ, लेग स्लिप लगा लो, रन स्कोरिंग रोको, उनसे को कुछ नया ट्राई करें, वहीं पे विकेटें निकलेंगी. बिल्कुल. यू मैन्युफैक्चर दोस विकेट्स, यू हैव टू टेक 20 विकेट्स, उसके अलावा नहीं कर सकोगे. किल ऑफ द स्वीप, किल ऑफ द फ्लिक. या करो फिर ये ट्राई करो. या एंड टेल हिम टू नॉट बोल टू फुल. ब्रेवरी दिखाओ. नहीं सॉरी, नहीं, वो बांग्लादेश का काम है, हमारा नहीं. हिम्मत सिंह का भी काम है. हिम्मत सिंह के तो नाम में हिम्मत है ना, लेकिन दलेरी नहीं है ना. दलेरी चाहिए, जिगरा नहीं है. जिगरा और दलेरी. तगड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे. शेबी तो मस्ट बी लूजिंग हिज मार्बल समवेयर इन अ पीटीवी स्टूडियो. शेबी ऑलरेडी वो कह रहा होगा भाड़ में जाएंगे. I saw other YouTubers and stuff create content on what Shebi was saying. मतलब यहाँ पे दुनिया आ चुकी हुई है. ठीक है, we're not that podcast though, so don't worry about it. आधी बातें तो हम भी कर जाते हैं. आधी बातें तो हम भी कर जाते हैं. खैर यार, बाबर नहीं था. बाबर इंजर हो गया. उफ, किधर इसने स्विच मारे शान मसूद की कैप्टनसी से. हाँ, बाबर नहीं था. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया. काफी ज्यादा उसके ऊपर कंस्पिरेसी थी.
थियरियां चल रही हैं पता नहीं क्या थियरीज हैं भाई। कि जानबूझ के निकाला है। Bro, क्यों come on, जानबूझ कर come on, निकालेंगे? be serious. Why would they do that? Babar was primed for this series, बल्कि he would be ruining the fact that he couldn't bat in that first batting innings for Pakistan when the नहीं, pitch was flat. नहीं ग्रीन नहीं थी पिच थ्रू आउट द टेस्ट में। मैं तो यही सुन रहा हूँ यार। अच्छा, आज मैं थोड़े से तानों के मूड में हूँ। हाँ मतलब डे 5 तक मैं यही सुन रहा था कि ग्रीन पिच है, whereas based on what I saw in this test match there was some early purchase with the new ball, ठीक है, which lasted for what 15 to 20 overs, फर्स्ट सेशन maximum 15 to 20 overs। उसके बाद फर्स्ट सेशन भी मैं स्ट्रेच करके बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लीवे दे रहा हूँ बॉलर्स को। So Shan Masood, he won the toss, saw the green pitch and he elected to field first. That's a major flaw. Yeah, flaw तो नहीं, that's a major mistake. मिस्टेक, दैट इज अ मिस्टेक। Yeah. मिसरीड कर ली पिच, बहुत गंदे तरीके से मिसरीड कर ली pitch. फर्स्ट टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। Nope. ये पाकिस्तान रेगुलरली करती रहती है इस तरह की गलतियां। Yeah. और अगर आप देखो यार, after those first 15 to 20 overs where there genuinely was some Yeah. purchase with the new ball, मैं ये नहीं कहूंगा तब नहीं थी, पाकिस्तान even took 2 quick wickets. After that the pitch flattened out big time. Flattened out until the cracks started to show up Yeah. later on in the test match. अच्छा, what I did like though, a lot of people were taking the piss out of Tony Hemmings, जिसको सब लोग Tony Hemmings बोलते हैं। Tony Hemmings is the new Harry Brooks, ठीक है यार। I love it, तुम किन बातों पे तपते हो। एक तरह से बुरी पिच नहीं थी, because we saw different phases. यार मैं बताऊं, पिच ठीक थी। मुझे मसला एशिया में टेस्ट मैच देखने से, ऑनेस्टली आई डोंट माइंड द पिच, इट्स जस्ट दैट द क्वालिटी ऑफ द ब्रॉडकास्ट, द कमेंटेटर्स, एवरीथिंग इज सो ब्लडी बोरिंग कि वो आपको लगता है कि क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही। ऑल्दो क्रिकेट ऑन डिस्प्ले वाज़न्ट दैट बैड, It wasn't that bad, but commentary की तुमने बात की तो वो एक मजर भाई हैं यार। मतलब I don't want to sound mean, यार मजर भाई तो हैं ही हैं, probably the worst out of the lot. शमीम भाई ठीक है एक, yeah, I don't know what Rambo was saying, I don't know what Sikandar Bakht was saying, I don't know what Athar Ali Khan says. यार अतर भाई वैसे मेरे दोस्त हैं। दोस्त होंगे अतर भाई, you should Yeah, no, join us here I on the cannot. podcast. I cannot argue with that logic. But look, so after the first 15-20 overs, pitch flattens out big time. ऐसी pitch flatten out हो गई कि बिल्कुल लग रहा था कि विकेट ही कहीं से आएगी, हाँ, आ ही नहीं सकती। can't buy a wicket वाला Yeah. scene था। ठीक है, and then at the end of day 2 we started to see some uneven bounce. Some balls really started to die down. Yeah. ठीक है, और वो good length पे बॉल मरने मर लग रही गई, थी। और फिर हमने एंड में देखा there was some balls that were rising. स्पिनर्स की राइस कर रही थी हाँ, bro। uneven bounce आ गया, day 2 के end से शुरू हुआ वो, and by the end of day 3 we also saw some purchase for the spinners. Yeah, turn There was some आने लगी, turn on exactly. offer, मेहदी को turn मिल रही थी out of all people. Not that he needs turn to dismiss Pakistan batters. वो तो सीधी बॉलों वो सीधी बॉलों पे आउट होते हैं पाकिस्तान वाले बैटर्स मेहदी की। वो एक टर्न करेगा, दूसरी वाली आर्म बॉल मारेगा, ताइजुल भी यही करेगा। ताइजुल की भी आर्म बॉल नहीं रीड हो रही थी। हारमन ने यही किया था इधर, सारे आर्म बॉल पे आउट हुए। ताइजुल को मैंने आज से ताइजुल बोला। ताइजुल ही है वो तेजुल है, वो लगता ताइजुल है, ठीक है। Who by the way I think is almost or already is the highest wicket taker for Bangladesh in Test. is by far. Yeah. 250 plus. Yeah, amazing, right? One of the unsung heroes of Bangladesh cricket. Shakib is second and Mehdi is third. Yes. और देखो मेहदी और ताइजुल ने कितनी विकेटें ले ली इनके लिए पिछले कुछ टाइम के अंदर। But anyway, so they misread the pitch, Shan Masood in particular. और अगर आपको बता दें, day 1 पे 4 wickets fell. Yeah. Day 2 7 wickets fell. Day 3 9 wickets fell. तो प्रोग्रेसिवली विकेटें ज्यादा गिरी थी, मगर 10 अभी तक नहीं गिरी एक दिन में। Day 4 was washed out for the most part. 3 wickets fell, उसको निकाल दो, और आखिरी दिन पे पूरी पाकिस्तान आउट हो गई 2 सेशंस के अंदर। आधी वो होगी। और 6 बांग्लादेश के बैटर्स आउट हो गए। Yeah. 16 विकेटें गिरी हैं आखिरी दिन के ऊपर। 16 wickets on day 5, and Pakistan really, even if they didn't win this test, they should have at least drawn it. यार इतने कोई ग्रेमलिन्स नहीं थे सादी। वहां से ड्रॉ नहीं हो रहा था, वहां से आप जीत रहे थे। इनकी मेंटालिटी ही ये थी, द टिमिडनेस शोन थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस, देन ऑन टू दोस सलमान अली आगाज प्रेशर में जो उसने बोला है, वो बता रहा था कि दे नॉट इन इट टू विन इट। Yeah, I mean, look, it was quite unfortunate. Shutting up shop. Bro, you score down 147 रह गया था जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो था when Saud Shakil and Rizwan were, वो तो जैसी नाहिद आया, हाँ नाहिद आया, मैंने कहा गया साउथ। Yeah. तीसरी बॉल गया, और मुझे पता था कि they're not going to take off Nahid Rana now. Why would he's going to bowl till the end of this test, and that was the right call as well. खत्म की है bro, करेंगे नाहिद पे भी बात, बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा नोट से शादी तप रहा था मेरे ऊपर। मैं पता है क्यों तब नहीं, मैं बाद में बताऊंगा जब उसके ऊपर आएंगे ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं तब क्यों रहा था। अच्छा, सिलेक्शन की बात करें तो खुरम probably should have played.
मैं नहीं बात क्या ही कर सकते. We knew Shaheen would play the first test. मैं कुछ बात और ही हमने नहीं ये कर भी रहा. कहा था कि Shaheen Abbas and Khurram cannot play in the same game because you need a first change bowler. Unfortunately आपके पास पूरी स्क्वाड के अंदर था ही हसन अली. उसको क्या मैं बोलूं. फिर बाबर इंजर हो गया. Unfortunate for him. So that means that it's a new batting lineup. New batting lineup with 5 top order batters who are left-handers. Yeah, and 7 lefties in total. In total. But I don't think I've ever seen this before in Pakistan. नहीं, That the top 5 are all lefties, and then 7 left-handers out of 11. अगली टीम में मेहदी बैठा हुआ है. मैं नहीं बैठा. ले गया ना फर्स्ट इनिंग्स में Yeah. करके अपना पूरा काम ब्रो. उड़ा गया. और plus यार शान मसूद at 4. I don't know about that either. Yeah, but- I'm either sending him out to open or he's batting first drop. It's not Multan Sultan. Yeah, it's not. यहाँ पे आपको middle overs में spin को तो नहीं लेकिन bash फिर करना. वो क्या करे. Yeah. नहीं उस पॉइंट पे मगर साथ ही पता है I'll actually play devil's advocate. Okay. नया बच्चा आया ना अब्दुल्ला फजल who did great, उस पे भी बात करेंगे. उसको आसान नंबर दे दो. फिर आप खुद आकर मुश्किल वाली जगह पे बैटिंग कर लो. नहीं I don't know bro. I'm not too sure on this is like when this. India This could go either way. क्योंकि Varun used to get pissed on India in the England tour कि यार why is Karun Nair batting at 5 and Sai Sudarshan's batting at 3. भाई एक्सपीरियंस वाला बंदा ऊपर आए ना. फिर बच्चे को ज्यादा आसान नंबर दो. ये भी है. 4 तो relatively क्या there is a significant difference between batting at 3 and 4. Yeah, there is. हाँ, And और अगर- Shan has been doing that job for a while now. And if Shan is going to come out there and try to play his shots, then you might as well do it at number 3. हाँ. Right? 4 पे तो नहीं. 4 पे नहीं बनती थी उसकी I sense. do agree with that. Yeah, I yeah. do agree with that point. खैर फील्डिंग काफी शानदार थी पाकिस्तान की इस टेस्ट में. Shan. या जबरदस्त. Fielding, wicket keeping, everything was on point. नहीं? Yeah, Rizwan had a मजा. howler. Rizwan had a proper howler. Oof, But oh, it started early, man. Salman Ali Agha dropped Mahmood Ul Hasan Joy on 4 in the slips. वो आउट जल्दी हो गया. आपको महंगी नहीं पड़ी वो ड्रॉप कैच. लेकिन but catch तो ड्रॉप तो था. Then there were 20 buys in the first innings. 20. I know कि Rizwan came up to the stumps after a certain time, मगर फिर भी बहुत गंदी कीपिंग थी. बहुत गंदी keeping, bro. At least 12 of those 20 buys were poor. Yeah. Right? And then Azan Awais ने actually एक अच्छी effort ली थी. वो अंडर एज पे जो उसने डाइविंग कैच पकड़ने की कोशिश की थी. Grasped it, but that's not a drop. अजान ड्रॉप करे, अब्दुल्ला फजल ड्रॉप करे, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं उन दोनों को. वो लिटॉन का ड्रॉप मैं ड्रॉप नहीं मानूंगा क्योंकि वो इट वाज अ गुड एफर्ट टू बिगिन विद. और वो वाले तुझे पता है फिर वो जमीन को लग जाते हैं आजकल. तो वो नहीं चलता. ठीक है. और वो सही फैसला है. राइट. आई एम विद दैट वाजंट आउट. फिर भाई ओवरथ्रोज आई. सेकंड इनिंग्स बांग्लादेश की सेकंड बैटिंग इनिंग्स की स्टार्ट में ओवरथ्रोज आ गई थी. आई थिंक पहला दूसरा ओवर था. ऐसा ही कुछ था. ठीक है. Swear to God. And then Mominul got 2 lives. Yeah. Rizwan dropped him on 15 Oh my of God. Cousin Sal's bowling. Which again, 2 साल पहले वाला रिजवान ये हड़प रहा था बॉलिंग. even when he's lost form with the bat, we've always maintained that Rizwan is one of the best glovesmen in the world, not just Pakistan. And this wasn't that guy. This was horrible. That- horrible. That was the sort of catch that he takes for fun. जो Mominul का ड्रॉप. मैं वही कह रहा हूँ ना. And then- साल पहले तक ये ले रहा था कैचेस. And then Mominul gets another life. Abdullah Fazal drops him on 43 at short leg. मुझे कोई समझा दे. Why is Imam not there at short leg? Why have you chucked in the kid? Debutant. ये क्या है? ये क्या है? क्या है यार? क्यों है ये? ये क्या है? ये कैसे है? ये क्या है? ये कब तक? ये मुझे नहीं पता. इसका जवाब मेरे पास नहीं. पता इमाम की जगह है वो. हाँ, वही भी करता है. इमाम डज वेल एट शॉर्ट लेग. ऑल्दो वो भी एक उसकी पंगों के बीच में से निकला था. नटमेग हुआ था वो. ही वाजंट लो इनफ. इधर उधर गैलप्स Yeah. शैलप्स मारता है वो. और फिर एंड में रिजवान आल्सो मिस्ड अ स्टंपिंग. Yeah. वो मेहदी वाली जो कि Easy. अगेन Easy. रूटीन स्टफ फॉर हिम. राइट. द ड्रॉप कैच एंड द स्टंपिंग वाज एक्सट्रीमली रूटीन फॉर हिम. सो द फील्डिंग वाज कंप्लीटली पैथेटिक टीके बाय पाकिस्तान. आप God. वैसे ही स्ट्रगल करते हो. यू आर नॉट अ टीम व्हिच इज वेल सूटेड टू टेक 20 विकेट्स इन अ टेस्ट एंड नाउ यू आर फील्डिंग लाइक एब्सोल्यूट पेडेस्ट्रियंस. So Schoolboy stuff. yeah man. Schoolboy stuff. I swear to God. My God. एमेचर आवर हम कई चीजों पे इस्तेमाल करते हैं. वो आई थिंक टॉप बॉटम हर जगह ही चलता है. बस यही मसले हैं हमारे. Yeah. एनीवे यार बंदा करे भी तो क्या करे. कुछ कर भी तो नहीं सकते हम बेराम. कुछ भी नहीं कर सकते. मगर तुम गल्ला कहां से कर- शुरू कहां से मुझे करना नहीं चाहते हो? समझ आ रही. Yeah, there's so much that happened. मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या तारीफ 2-3 बच्चों की करनी है. हाँ. उनकी करके आगे बढ़े या पहले क्या करें. क्या नहीं मैं तुम्हें बताता हूं कहां से शुरू कर रहे हैं. बांग्लादेश से शुरू कर नहीं, लें. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर्स से. That's where we'll start and we will start with Shaheen Shah Afridi. चलो भाई. हाँ भाई. So I kid you not guys, मैं तंग आ गया हूँ ब्रो. watching military medium Shaheen ये straight military down medium क्या होता है? पहले तो military medium होता है जो बिल्कुल ही मतलब 120s वाला होता है. मीडियम भी तो हो सकता है वो. यार Military it's a medium phrase. I don't know the etymology of the phrase, but just to quote Matty Haydos, उसने कहा था ना ऑली रॉबिन्सन का, military medium guy who bowls nude nuts.
Sheena was probably that guy now. Yeah, ये nude Nazi थे खैर. Look, he did slightly well with the new ball in the first innings. Slightly well. But नहीं. not पता really. नहीं. Yeah. नहीं. Bro, he was all over the place, bro. He No, was sorry. all over the shop. Sorry. I mean, these weren't test match lengths at all. It is so painful to watch military medium Shaheen stray down the pads, not able to hold his line, not able to hold his length. Erratic. यार मतलब अगर चलो ठीक अगर पेस नहीं है, length ही hold कर लो. मैं यही कहने लगा था. ठीक है, समझ आ गई आपकी पेस नहीं रही वो. एटलीस्ट डू वन थिंग राइट. या लेंथ होल्ड करो या लाइन होल्ड करो. आइडियली तो दोनों होल्ड करो. बिल्कुल. दोनों नहीं होल्ड कर सकते फिर फायदा. This was not test match bowling. ब्रो T20 में इस पे भी पड़ती हैं ब्रो. Discipline तो था ही नहीं. If he is bowling it at a length, then he's straying down the pads. यार, when he's bowling at 128 kilometers per hour, वो जो full length delivery है वो तो खत्म है. वो तो ड्राइवे ही पढ़नी है उसपे. कोई फायदा नहीं है. और ड्राइवे पढ़ी है. बेतहाशा पढ़ी है. ऑन ड्राइवे में पढ़ी है, कवर ड्राइवे में पढ़ी है. काफी ड्राइवे पढ़ी है. स्क्वायर ड्राइवे भी पढ़ी है. बहुत स्क्वायर ड्राइवे तो इस पूरे मैच में बहुत थी. हाँ, थोड़ा सा था उस तरह की. कुछ ज्यादा ही स्क्वायर ड्राइव्स थी. But yeah, I mean, look, he took a 3-for in the first innings, but it was one of the worst 3-fors I've ever seen him take. 3 for 113 and 31.1 overs. 2-for in the second innings was better than his 3-for. Honestly, 2 for 54 in 16 overs in his second dig was better than 3 for 113 and 31.1 overs. Still very poor. Very, very poor. दूसरी innings में भी जो start लिया था at the start of the third innings, that was so poor. टांगों पे करार है, वरना यार कभी short है, कभी full है, cannot hold a length. It was painful to watch. And then वही वाली बात है, bowling at such low speeds as well. लोग कहेंगे कि आप आवाज की तो तारीफ करते हो यार इसी चीज पे. Shaheen is not that profile of bowler. Shaheen is supposed to be quick if he is to be effective. यार आपके और वही वाली बात है ना, अगर नहीं आ रही पेस तो चलो फिर try to do what Abbas does. Exactly. वो भी नहीं होता ना तो फिर फायदा क्या होता है यार. Yeah. As in Abbas on the other hand in the first innings जहां पे सारी दुनिया उसे रोल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्कुल समझ नहीं आई. ठीक है, उसकी पेस वो कभी भी नहीं थी वो वाली. Yeah. लेकिन हमें सबको पता है कि Abbas किस तरह का बॉलर है. I mean, after the end of day's play on day 1, I saw so much Abbas slander on the timeline. I couldn't understand it. I was like, he was your best bowler today. I was like, he was bowling all right. उसी ने तो सिर्फ bowling की है. You know, and Abbas picked up his 6th 5-for in test cricket in this test. 5 for 92 in 34 overs in his first dig. और फिर वापस आकर भी in 14 overs, he took 1 for 35. So he took 6 wickets for what? 127 runs? यार मतलब आपने उसके कितने करियर जाया किए हैं यार. पूरा करियर जाया किया है. This guy is a metronomic maniac. He will continue to pitch the ball in the same channel. He's going to get to nip the ball, or he'll make the ball nip in either direction off the deck. और फिर उसके बाद, you know, accuracy तो है ही. He has the ball on a string. यहाँ पे तो बाउंसरों से विकेट ले गए. मतलब उस पेस पे ये फिर मच्छर आ गया. ये मरा नहीं. मच्छर हूं मैं. अच्छा, चलो पूरा गाना नहीं गा सकते आज बहुत बातें. मुझे आगे जाके कॉम बॉक्स पे लाइव करना है. आज बहराम के पास टाइम नहीं है तो देखो कितनी तेजी से काम हो रही है. खैर, I would personally like to send some humble pie to all of those guys who were completely on Abbas's case. यार देखो, टेस्ट क्रिकेट है, you need different type of bowler. अगर आप 3 अब्बास खिलाओगे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको 1 अब्बास चाहिए. और आपको उस 1 अब्बास के साथ कुछ इन्फोर्सर भी तो चाहिए. वो नहीं है ना. लॉन्ग स्पेल्स कराने वाला स्टॉक बॉलर जो एक ही जगह पे कराए, that's great. You need that kind of bowler. Pakistan didn't realize this for the longest time. This wicket did not suit Mohammad Abbas, by the way. This was not the sort of wicket on which he's supposed to be good. लेकिन he's good regardless of the wicket now. बहराम, क्योंकि वो वाली जो वैल्यू वो प्रोवाइड करते हैं, एक ही चैनल में बोल करते रहो, वहां पे कभी ऑफ क्या कहते हैं उसे, ज़हन से ही निकल गया मेरे बात. वॉबल सीम कभी लग के अंदर आएगी, कभी बाहर जाएगी. पता नहीं, एकदम मैं निपियां थोड़ी सी लॉस्ट हो गया था मैं यहाँ पे. I mean, so वहां पे आप विकेट निकालने के चांस ले सकते हो. आपको उस तरह का बॉलर चाहिए होता है. You need someone who can continue to pitch it in the same spot, be a stock bowler and challenge both the outside edge and the inside edge. That's what Mohammad Abbas does, right? And I think Pakistan have wasted him criminally because they've never understood that not many can do what Abbas can do. A wobble seam bowler who is disciplined, कितने गिन सकते हैं हम अभी recently? Scotty B has made a career out of it, although Scotty B थोड़ा ज्यादा तेज है. ठीक है. हाँ, लेकिन है तो वही, मतलब similar type of bowler. Vernon Philander तो तेज नहीं था. Big Vern wasn't quick. इससे तो तेज ही था फिर भी. हल्का फुल्का ऐसे तेज ही था. But either way, even if Abbas is bowling it at 120 kilometers per hour, you need a stock bowler. And honestly, he's never gotten his wickets through pace. Yeah, never. कभी भी नहीं. He's never relied on pace to get his wickets. ठीक है. तो ये दोनों conversations जायज हैं. Yes, you don't always need pace, but you need an enforcer in the team as well who can crank it up and hit the hard lengths and, you know, batters को ruffle their feathers and stuff. वो कौन है? वो नहीं है ना. Pakistan doesn't have that guy. Hassan Ali is supposed to be that guy, but he isn't. He's also lost a yard of pace.
And he's skiddy. He's going to target the stumps. He's not going to rush you. ये है ना मसला. मतलब ऑब्वियसली 3-4-5 साल पहले वाला हसन अली और इस हसन अली में बहुत डिफरेंस है यार. इंजरीज भी काफी हुई हैं एंड यू नो व्हेन ही हैड दैट सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका मुझे लगा था कि बड़ा कुछ कर जाएगा. हैजंट पैन्ड आउट. उसके बाद कुछ भी नहीं किया. कुछ भी नहीं किया सच. आई कैन एक्चुअली रिमेंबर उसके बाद कुछ भी किया. नहीं किया ना. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिटा था. उसके बाद ड्रॉप हुआ. वापस आकर भी कुछ नहीं किया. एंड ओवर हियर इफ यू लुक एट हसन अली's performance man, 1 for 75 in 26 overs and then 3 for 52 in 17.3 overs. I wouldn't call it dog shit but I wasn't impressed either. क्या out of his 4 wickets 2 पे तो वो मार रहे थे. ऐसा ही है. ठीक है. और ठीक है 2 अच्छी विकेट थी मगर 2 तो लिटरली आपको इसलिए मिली है क्योंकि बांग्लादेश वर यू नो पुशिंग देयर फुट ऑन द गैस. खैर मतलब हसन अली isn't the solution to your problems now right now. Pakistan would kill for a Nahid Rana. ठीक है. They do not have a single Nahid Rana in their system. Perhaps Ali Raza can be that guy in the future. Ali Raza है. I mean, in 6 first-class games, Ali Raza has taken his wickets at less than 21 apiece. I think 20.5 की bowling average है. But when I look at him in stature, जब मैं उसकी बॉडी देखता हूँ यार वो टूट जाता है. नाहिद भी कंगड़ी सा ही है. उतना कंगड़ी सा नहीं है. अली रजा इज लिटरली ट्विग्स. तो उसको करो ना थोड़ा सा. अब आप डेस्परेट हो. शाहनवाज दहानी वाज अनदर हिट द डेक हार्ड काइंड ऑफ बॉलर जो आप टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल कर सकते थे. नहीं उसको T20 में बेंच पे बैठने का शौक है. रेड बॉल पे ज्यादा फोकस करने का शौक नहीं. बंद तो गया पेशावर ज़ल्मी के साथ चैंपियन बट डिडंट बोल अ सिंगल डिलीवरी. यार कम ऑन दहानी यार. यू आर वेस्टिंग योर करियर इन रेड बॉल. सीरियस हो. इस दफा फर्स्ट क्लास में कादिर आज़म ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 2 परफॉर्मेंस और आउट टीम में यार. ये 2 हो गए एक ऑप्शंस में. ठीक है. इफ यू आर लुकिंग एट एनफोर्सर्स क्योंकि हारिस रऊफ तो खेल नहीं सकता टेस्ट मैचेस. ठीक है. और तुम तो बात ही नहीं करना चाहते हारिस रऊफ की. शक्ल बन गई. मैंने नाम क्यों ले लिए. तो वो आया कहां से कॉन्वर्सेशन में टेस्ट क्रिकेट में. मतलब इस पॉडकास्ट में मैं सोच के भी नहीं आया था आज आप हारिस रऊफ का नाम सुनूंगा मैं. खैर मतलब यार अब्बास बाउंसरों पे विकेट ले रहा है. सोचो अगर एनफोर्सर होता हारिस रऊफ. नहीं हारिस रऊफ नहीं मगर एनीवन राइट. आई थिंक इट माइट स्टिल बी अ बिट टू अर्ली फॉर अली रजा जस्ट बिकॉज़ आई फील लाइक हिज बॉडी इजंट रेडी. फक इट. बट सादी तो आ गया यहाँ पे यार. मतलब ठीक है हर मैच ना खिलाओ उसे लेकिन उसे लेके आओ. What I want is के you have no flat deck bowlers. You needed him on this kind of a wicket. जहाँ पे ग्रीन टॉप है बेशक आपके पास दूसरे. ये तो ग्रीन टॉप था. टॉप वैसे ग्रीन ही था. टॉप ग्रीन था. खैर जहाँ पे आपको पता है कि फ्लैट विकेट मिलेगी. खैर इन्हें तो नहीं पता था ना वो. लेकिन अगर आपको पता है कि फ्लैट विकेट है आपको इस तरह का बॉलर चाहिए तो अली रजा को वो वाला टेस्ट मैच खिलाओ. वरना बिठाओ उसके ऊपर काम करो. और कोई नहीं नजर आ रहा मुझे पूरे सिस्टम में. हमारा एक है फॉलोअर. I don't know जानी है कि नहीं है but he regularly messages me. I've completely forgotten your name bro. I'm so sorry. I think उमर. उसने इस्माइल वट्टू का भी नाम मेंशन किया. इस्माइल वट्टू ठीक है. I thought इस्माइल वट्टू is a new ball bowler but he said he can bowl at first change. He can लेकिन अभी नहीं. Yeah. He's a bit too raw. Yeah. I think Ali Raza is also a bit too raw, but that's an issue because you have no one. Bro. Rambo ने name drop किया अली रजा को 50 दफा इस टेस्ट में. नाहिद राना जब आया था तो क्या वो रॉ नहीं था. True. रॉ था ना. बिल्कुल रॉ था. और हम यही बात करते थे. वो डेफिनेटली स्मैकडाउन तो नहीं था. रॉ. फिर देखो ना वो क्या कर रहे हैं. देखो ना जिस पेशावर ज़ल्मी वाले उसके स्टिंट से पहले मैं सुन रहा था कि T20 का अच्छा बॉलर नहीं है. इतनी एवरेज है उसकी. क्या की है उसने. This is quality, bro. Yeah, that was quality, man. And you know, like I said, Pakistan would kill for a Nahid Rana. He is exactly the kind of fast bowler that Pakistan would wish for. And it's ironic because Pakistan's supposed to be that country which produces these kinds of bowlers on the regular. वो पीछे पोस्टर लगा हुआ है. पीछे pace is pace यार लगा हुआ है यार. कॉइन हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट पे नाम. पाकिस्तान क्रिकेट हेरिटेज ही फास्ट बॉलिंग है. और अब है ही नहीं बंदा आपके पास. ढूंढ के भी नहीं मिल रहा. हम कितनी कोशिश करें. So that is a big worry. और देखो ना बांग्लादेश have that guy जिनका आप एक टाइम पे मजाक उड़ाते थे कि इनके तो बॉलर तेज ही नहीं है. अब मजे करो. आप चेक करो. Yeah. Enjoy. I mean if Hassan Ali is in your first change enforcer role then that was a flop to begin with. We highlighted this. We did highlight in the preview as well. We were like ये बहुत बड़ा मसला है. They have Nahid and Abbotsford but Abbotsford तो उस्ताद खत्म हो गया. 50 की एवरेज है उसके बाद. Abbotsford's done. I won't blame him 50 की एवरेज पे क्योंकि वो उस तरह की बांग्लादेश पिचेस पे खेलता था. लेकिन बट नहीं वो तो उतनी पेस भी नहीं मारा था जितनी मुझे याद थी. So Nahid was their only enforcer but they had one and he ultimately won the test. But पाकिस्तान के बॉलर्स को खत्म करने से पहले एक बंदा रह गया. नियोमी पाइंड जो ये पीछे लगे हुए हैं मगर ये क्या कर रहे थे. नो बॉल मी पाइंड बने हुए थे. ये जोक भी मारा था ना सिकंदर बख्श ने मारा था. ओह वो मैंने बेहतर मारा उससे. था यही जोक. बड़ा गंदा था. Are you calling him no man because he bowls all those no balls? Yeah, well, Nomi Payan was unbowlable in his first outing in that first innings. 6 नो बॉल है.
6 नो बॉल 6 no या ball. एक पे तो विकेट थी, मुशफिक आउट था या वो आउट था, वो रिव्यू लिया, वी नेवर गॉट टू सी डीआरएस क्योंकि नो बॉल कॉल हो गई, बट आई किड यू नॉट दैट वुड हैव बीन 3 रेड्स। ठीक है, वो ले गए थे विकेट नोमी पॉइंट, बस नो बॉल थी यार, कुछ 6 नो बॉलिंग करा दी। And you know, That's one good. for 80 in 20 overs. He's supposed to tie up one end, offer control. वो 4 runs per over पर जा रहे हैं नोमी पॉइंट। वो South Africa against US in the second test, he was horrible. Yeah, he was quite horrible. Maybe he's a bit rusty. I'm not sure, but I wouldn't play him in the second test. साजिद या साजिद ही लाओ, फिर उनके लेफ्टी नहीं आउट हो रहे तो उनको फिर कोशिश कर लेगा वो आउट करने की। शान ने नोमी को तो बॉलिंग देनी नहीं तो उससे बेहतर साजिद को ही खिला लो। But 1 for 80 in the first innings in 20 overs was the worst performance perhaps amongst all bowlers. Amongst all bowlers. क्योंकि पाकिस्तान we में। just even if he doesn't take wickets, we expect Nomi Pine to be frugal. कि चलो यार एक एंड रोक लेंगे। उफ, नोमी पाइन ने कहा कैसे? नोमी पाइन ने कहा अब नहीं आओ नहीं, मारो। आज मैं अंडर परफॉर्म करूंगा, सेकंड प्लेस पे हूं इन दी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स, दैट नीड्स टू कम डाउन। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? In the third innings he was slightly better, 3 for 76 in 18 overs, एंड में अच्छी बॉलिंग कराने लगे थे, बट honestly मार रहे थे यार वो। not impressed। मैं आखिरी वाली थर्ड वाली इनिंग्स की विकेटें नहीं गिन रहा। सही कह रहे हो तुम। पहले 3 विकेटों के बाद मैं नहीं गिन रहा। नहीं नहीं तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। So Nomi एक्चुअली Pine, पहले 4 विकेटों के बाद मैं नहीं गिन रहा। Nomi Pine seriously underwhelmed because at least बाद में जाकर तो थोड़ी टर्न थी। It wasn't turning square, it wasn't dragging, लेकिन एंड तक विकेट जो है ना, it was a decent batting strip, I still believe that। आई बिलीव सो टू। वो यहाँ पे नोमी पाइन की बॉलिंग की गलती तो है ही है, साथ ऑब्वियसली शान मसूद की भी वहां पे गलती आ जाती है कि Yeah. ज्यादा ओवर ही नहीं दे रहे यार। मतलब क्या कर रहे हो यार? और नोमी पाइन ने मोमिनल तो निकाल दिया था ना, वो तो फिर खैर अगेन शान मसूद की गलती थी। अब्दुल्ला फजल क्यों रखा हुआ था वहां पे? इमाम होना चाहिए था, या वो शायद इमाम- इमाम भी ड्रॉप कर देता। या शायद इमाम ही कह रहा हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ? मुझे क्या पता? यू थिंक ही पुल्ड ऑफ अ सोबी मैक्स? हाँ, मुझे क्या पता? सोबी मैक्स सिर्फ सोबी मैक्स पुल ऑफ कर सकता है। मिसबा को तब चढ़ा दी थी। खुद हेलमेट पर खुद चला गया था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है, कप्तान की बात सुनो। मगर तुझे पता ना, सोबी मैक्स थोड़े ढीले तो थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस बात सही तफा था यार। Love the guy. I think he's a really fun personality, especially on Twitter, and very talented batter and hitter. But God, I Awful mean, fielder. I would never keep him. He would probably make my worst fielders team. Oof, Yeah, yeah. Easily. तो खैर ये हो गए पाकिस्तान के बॉलर्स। आ जाते हैं हम अपने बांग्लादेशी भाइयों पे। बैटिंग से शुरू करें उनकी? नहीं, बॉलिंग से ही कर लेते हैं। बॉलिंग रैप अप करो, फिर बैटिंग पे आते हैं। आई थॉट बिफोर वी गेट टू द गाइज हू डिड रियली वेल दैट तस्किन वाज गुड। तस्किन was really good. तस्किन वाज रियली गुड। उसकी बॉल में बाइट थी, Bite, ठीक है? बेशक थी, या और ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप वो करा रहा था तो लोगों से नहीं लग रही थी इतनी, ठीक है? नहीं, टच कर देते थे इमाम जैसे। हाँ, वो तो हो ही जाता है। तुमने लगने की बात की ना, टचिंग हो रही अभी थी। तो भाई तस्किन ने वो नो बॉल ना कराई होती जिसपे कजन साहब डक पे आउट हो गए थे, मैच बहुत पहले खत्म हो गया होता। हम कल बात कर रहे होते Yeah, it would have ended an eternity ago. And I thought actually he was really good, picked up 4 wickets in the test. He was really good. Yeah, but obviously he wasn't the best seamer on display. I think the best seamer for Bangladesh at least, क्योंकि Abbas और Nahid, different roles, different kinds of bowlers, hard to compare. But Nahid Rana, I mean, I've said it plenty of times before, man. The wheels on this kid. That fourth inning spell. Oof, what a spell. Last session spell was amazing. Wheels तो ऐसे हैं कि Michelin should actually ऐसे ही होना get him चाहिए। on board as their brand ambassador. SLM नहीं, हाँ। SLM. तुम्हारा क्या है मसला है तुम्हें SLM से? पता नहीं बस। Anyway, he was bowling rockets as usual, bowling with serious heat. पहली इनिंग्स में पिट गया। पहली इनिंग्स में था, दूसरी इनिंग्स में भी पिटा हुआ था ब्रो। हाँ। पिटा हुआ था। नहीं, पहली इनिंग्स में तो after hitting Azan Awais on the head, he got slammed for 3 pulls by Azan later in the day. ठीक है? And 1 for 104 in 21 overs was extremely underwhelming for Nahid Rana in his first bowling innings. Then he came back in the 4th innings, 5 for 40 in 9.5 overs, extended spell, game set match जिताकर आया बांग्लादेश को। पहले उसे 5 ओवरों में 30 रन पड़े हुए थे, 0 विकेट्स। उसके बाद दैट स्पेल जस्ट किल्ड पाकिस्तान ऑफ। He is a star. आया साउथ शकील को उसने रिमूव किया, उसके बाद जो रिजवान को उसने Nip backer. Rizwan showed his arms. Yes. Bold. नोमी पाइन को LB और मतलब शाहीन को बाउंसर मार के आउट किया है। शाहीन को दिखाया कि ये होती है फास्ट बॉलिंग। मैं जरा रिव्यू ले लूं, थोड़ी सी इनकी सेलिब्रेशंस डिले कर देता। Exactly. I know I gloved it, but let's review मतलब this. everyone knew you gloved it. Yeah. But I mean, man, it is so exhilarating to watch this kid bowl, Saadi. I cannot wait for the day Nahid Rana plays a Sena test. Conventional wisdom suggests that he'd be better, he'd be more lethal. क्या पेस है बच्चे की यार। पेस तो और फिर जो बॉल उठती है इसकी, ब्रो हाइट इतनी है the ना, way it rises, such a quick arm action as well. I love watching this kid play cricket. And I mean, एंड में डेथ ब्लो तो उसी ने दी है पाकिस्तान को। ऐसे ही है, खत्म। फेटल तो वही साबित हुआ है वहां। लास्ट पेयर था सऊद और रिजवान का, दोनों को निकाल दिया उसने। नहीं, आई मीन
I definitely, और नाहिद राना has earned a fan in me, और ये आज से नहीं, ये कुछ टाइम से, अभी PSL में इतनी तारीफ की है इसकी. I think this kid will go places. Last year भी बहुत तारीफ की थी इसकी हमने. Is he the most exciting prospect that Bangladesh even have right now? Yeah, 100%. Easily, right? 100%. इसके बाद तंजीद आता है. हाँ, बैटिंग में तंजीद है. जिसको मैं तो खिला लेता बस की बात. अब शायद सेकंड मैच में खिला ही अब खेल ही लेगा वो probably. मगर नाहिद राना was an absolute spectacle on display on day 5, and I mean जब पाकिस्तान बांग्लादेश से टेस्ट मैच में हारा है, कुछ ना कुछ तो किया है बॉय ने. ऐसा ही पड़ गया, लड़ गया, खा गया. वो डर जिसका था हमें वही हुआ ना. उसके बोटियां नोच ली हैं, डकार डकूर मार ली हैं. उसके साथ फिर मेहदी. यार मेहदी का तो पता था हमें. We knew that. हमें बोला था. Yeah. If there was one predictable outcome from this test match, इसके 7 left-handed batters of Pakistan, Mehdi is going to take wickets. Or Mehdi will also take wickets with his arm ball. And he will take wickets against right-handers as well. Yeah. Don't care. Khair, in that first innings, Mehdi took 5 wickets and all 5 were lefties. Yeah. सारे के सारे left-handers. 5 for 102 in 38 overs. 30 क्यों निकल गया? 30 निकल गया. 38. ठीक है. 5 for 102 in 38 overs. अच्छा. ठीक है. And all 5 lefties. फिर 1 for 47 and 17 overs later उसकी जरूरत नहीं पड़ी. मतलब ऑफ स्पिन भी कन्वेंशनल के साथ भी, आर्म बॉल के साथ भी पाकिस्तान से नहीं खेला. आर्म बॉल तो वैसे नहीं खेली जाती. वो ताइजुल की भी नहीं खेली जा रही. वो किसी की नहीं खेली जाती यार. मुझे याद है साइमन हार्मन ने क्या किया था हमारे साथ. आर्म बॉलों पे आर्म बॉलें करवा के विकेट ली थी यार. अभी तब भी हम यही बातें कर रहे थे लास्ट टेस्ट में. तो इसका मतलब है सीखे कुछ नहीं है. अब बाय द वे पाकिस्तान आर डाउन टू नंबर 7 इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. बांग्लादेश 6 था. या रैंकिंग्स. तो पाकिस्तान का तो खत्म है. फाइनल का चांस है. इट एंड्स हियर. कौन सा चांस? अगर कोई थियोरेटिकली चांस था वो भी खत्म है. दे आरंट विनिंग 2 टेस्ट मैचेस इन द वेस्ट इंडीज. दे माइट लूज बोथ. वहां पे पेस नहीं खेली जानी. वेस्ट इंडीज पहुंच के अभी अगले टेस्ट मैच की फिक्र करो भाई. क्या हो गया? अगले टेस्ट मैच अगले में हारेंगे और खत्म. तो वेस्ट इंडीज पहुंच के ये भी बात सही कर रहे हैं. इफ एनीथिंग शायद इंग्लैंड में कुछ कर जाए फिर फ्लैट डेक समर. मगर वहां पे विकेट नहीं ली जानी. वहां पे पेलेंगे वो हमें 300 अगर फ्लैट डेक मिले. एनीवे कमिंग बैक टू करो कि कोई इधर उधर घूमती हुई बॉल मिले हमें तो हम कुछ कर. वाकई अब्बास कर लेगा वहां पे कुछ, वरना कोई चांस नहीं. अब्बास भी टेस्ट हो जाएगा ना फ्लैट डेक पे. क्या करना है उसे? क्यों और टेस्ट करवाना है? उस बेचारे की क्या गलती है यार? नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि उसके लिए तो नहीं वो कंडीशन सूटेबल ना उस तरह. मगर खैर जैसे मुकी कहता होता है, and I continue to quote Muqtada Hameed Arjani the podcast time and again, if he can take wickets with a kookaburra ball at Trent Bridge, he can take wickets anywhere in the world. वो कूकाबुरा बॉल से ट्राई किया था उन्होंने काउंटी. हाँ, अब लोग कहेंगे कि इंग्लैंड में तो ड्यूक्स होती है. दे एक्सपेरिमेंटेड विद द कूकाबुरा इन काउंटी क्रिकेट और उसने तब भी विकेट ले ली थी. अनलेस मुकी ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोल दिया और हम जलील हो गए. मैं तुम्हें इतनी दफा कोट कर चुका हूं, ये मेरे साथ हैंड मत करना. तो रिसर्च कर लो ना इसके ऊपर. हाँ, कर लेनी चाहिए वैसे. मगर ट्रेंट ब्रिज इज अ फ्लैट डेक एज वेल, सो वी कैन बी होपफुल. बट खैर कमिंग बैक टू मेहदी, 14 5 ब्रो. बड़ा टाइम हो गया, पंजे ले रहे. हाँ, मतलब काफी टाइम से खेल भी रहा है. And he always, as we said, troubles Pakistan with the straighter ones with his arm ball. The Imam dismissal, the South dismissal, और फिर एंड में इसने एक और लिया है, I think Azan Awais, right? वो भी आर्म बॉल थी. मुझे याद नहीं. Pretty sure that was an arm ball. हाँ, that was an arm ball. या तो खैर अजान को तो हम दे देते हैं फ्री पास. यहाँ पे उसने बड़ा अच्छा खेला लास्ट इनिंग्स में. अच्छा हाँ. मगर the Imam and South dismissals, which they both reviewed. आर्म बॉल सीधी सीधी जा रही. पता नहीं वो स्वीप कहां से मार रहा था वैसे साउथ. आई हैव नो आइडिया. तो इट वाजंट द बॉल दैट वाज टर्निंग अवे. 3 विकेट तो हमने यहाँ पे आर्म बॉल्स पे गिनवा दी आपको. सो वो बस है मेहदी का सीन भाई. लेफ्टी तो उसने फॉर फन आउट किए. एंड ऑनेस्टली इफ यू लुक एट दीज 3 टेस्ट मैच विंस versus Pakistan for Bangladesh on the bounce, Mehdi has been a feature in all 3 as well. With the bat, with the ball, यहाँ पे with the ball a bit more. But they know how to take wickets in Bangladesh. इतना तो हमें आइडिया था. And it was a masterclass. और ताइजुल भी अच्छा था. ताइजुल ठीक था. No issues. Yeah, he was disciplined enough. भाई यार मतलब आप देखो कि bowling attack इतना बेहतर था बांग्लादेश का. And this is including Abertord who couldn't do shit. Right? तो कुछ भी नहीं. उसने तो कुछ किया ही नहीं. तो बस ये है फिर आपका हाल. You have to win test matches with your bowling, and Pakistan has been struggling since how long now? The Australia series. यार मैं जो ना वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2022 की शुरुआत में थी. अब हम 26 में 4 साल हो. यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना थोड़ा सा तंग आ रहा हूँ. तंग आ गया शादी? नहीं मतलब जनरली इन सारी चीजों से. कितनी दफा बंदा यही बातें रिपीट करे यार. रेपिटेशन इन हेवन. 3 साल हो गए एक ही बातें करते हुए यार. वही थीम्स, कुछ चेंज नहीं है. वही स्टूपिडिटीज.
और वो किससे, इन्हीं प्लेयर्स से यार। Yeah. या तो कोई नए प्लेयर आके ये गलतियां कर रहे हो ना, उन दोनों बच्चों को देखो, उफ, बच्चे कितना फिट खेले हैं यार। मेच्योरिटी दिखाई है उन्होंने गेम debutants. अवेयरनेस दिखाई है। Yeah. अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोहोनेस दिखाए हैं कि कोहोनेस इस तरह बहुत से दिखाए। खेलना नहीं, है, नहीं। मेच्योरिटी, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग द ग्रेट ओवर देयर। वाकई एक और बैट्समैन से मिली है नहीं, मतलब ठीक है, सलमान अली आगा और रिजवान अच्छे हाँ। थे, उन्होंने काउंटर वो काउंटर अटैक अच्छा था। दैट्स इट। Yeah, that is it, man. दोनों ने अपनी विकेटें फिर थ्रो की हैं, और by the सलमान way- अली आगा और रिजवान की, जहां पे हम हाँ। अच्छे नॉक्स की बात करें, दे थ्रू अवे देयर। Before that, I want to talk about South Shakil a bit. South Shakil, up until the end of 2024, was averaging 50 plus with the bat in Test cricket. Saad and I would get excited thinking, hey, this is another guy who might end his career with a 50 plus average. 50 नहीं तो 45 प्लस। You know why we said that? Specifically because he did well in South Africa. We were like, यार पता है कर वहां पे लेगा। उसने एक अच्छा नॉक खेला तो हमारे reservations थी कि maybe he might not be as good in Sena, he might work out after all. And we got excited. But since the start of 2025, South Shakil has not scored a single ton in Test cricket, and he's averaged less than 24 runs per dismissal. तो उसको ही पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल ही फारिग हो गया बॉय. He needs to go back to the drawing board and figure this out because Pakistan needs South Shakil. यार वो सूडी शैक है, हमारा ये क्वीशा साउथ शकीलिया था नहीं था? मैं इतना घटिया जोक था ना, मैं कसम से दिल चाह रहा है मैं मारूं तुम्हें उठ के, साउथ चकीलिया। क्वीशा साउथ शकीलिया। मैं सूडी शैक की मैं ये बात कर रहा था कि चलो फर्स्ट इनिंग्स में बहुत गंदा डिसमिसल था, दूसरी इनिंग्स में ही वाज लुकिंग कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन। जैसे ही नाहिद आया ना, आई न्यू इट, ये गया इससे नहीं खेली जानी एक्सपेक्ट। पेस के खिलाफ मसले तो हैं, बट ही वाजंट आउटडन बाय पेस बाय द वे। Yeah. लेकिन then again मतलब stupid shot to play यार। Coming to the first innings, he's supposed to be one of Pakistan's best players versus spin. ये क्या sweep थी? What was that? I don't know. Didn't even look comfortable. South Shakil तो इतना comfortable sweeper of the ball है. That's his best shot. I don't know. I don't know what's going on with South. Sudi Shack? मुझे पता है। छोड़ो यार क्वेटा ग्लैडिएटर्स, प्लीज फोकस ऑन रेड बॉल। That is your format. पैसे भी तो कमाने होते हैं। That is your format. जाओ काउंटी से कमाओ। काउंटी के गया। काउंटी से कमाओ यार थोड़े बहुत। I know कोशिश थोड़ी करो। सी हिट पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। Franchise money is different to county. But bro, you need to prioritize your career. Red ball में बहुत अच्छे जा सकते हो। Yeah. बाकी फॉर्मेट्स पे फोकस किया तो इधर से भी जाओगे, फिर क्या करोगे? He was the one beacon of hope for Pakistan in that torrid run in Test cricket, right? जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो ये साउथ South चल था, रहा है। हाँ। साउथ चल रहा है यार। वो खत्म हो गया ना। लव सूडी शैक। I love him, मुझे bro. बहुत पसंद है। ठीक है, अब पता नहीं क्या हो गया। यार इन प्लेयर्स को I would give him an extended run by the way. ये पूरा साल मेरे लिए खेल रहा है वो फिलहाल, मगर इस तरह तो नहीं। साल में इंग्लैंड के बाद क्या है हमारा? I think श्रीलंका टेस्ट भी इसी साल है ना? नहीं मुझे लगता है वो अगले साल। नहीं, आई थिंक वो अक्टूबर नवंबर में जब ट्राई सीरीज कर रहे हैं ना इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ, उसके इर्द गिर्द टेस्ट मैचेस भी कर बस देंगे। ठीक है, फिर वहां तक तो खेले। हाँ, I'd give him. I would give him that rope because I know this guy can be really really and good. he's earned this much. Yeah. तो इतना तो अर्न किया उसने 3 सालों में। बट अब 1.5 साल से अगर आप 24 भी नहीं एवरेज कर रहे तो ये हाईलाइट तो होगी चीज। 1.5 साल में कितनी इनिंग्स हुई हैं? Yeah, there was the West Indies tour, or not the tour, the series, home series. इस साल तो एक ही हुआ है ना। हाँ, इस साल एक ही। हाँ तो मतलब तो एक गंदा साल हाँ है। मतलब 1.5 साल क्या ना, थोड़ा सा ज्यादती हो जाती है Fair. जब उसमें से आधा साल खेला ही नहीं। और पाकिस्तान खेलता ही कितना है एक साल में, exactly. तो वो भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन पिछले 3, 4, 5, 6 टेस्ट मैच से बहुत गंदा कर रहा है। I would give him confidence. I would say कि साउथ अपनी गलतियां ठीक करके वापस आओ because Pakistan need him. Yeah. They need that insurance that he used to bring. यार अब मसला पता है क्या हुआ है? He comes in at number 5 जो आई थिंक इसकी परफेक्ट पोजीशन है, लेकिन ऊपर 4 लेफ्टी और हैं आपके पास। इसलिए सेकंड इनिंग्स में देखो उन्होंने सलमान अली आगा को प्रमोट किया इसके ऊपर। क्या अब वो करेगा पाकिस्तान प्लॉय? लेकिन बाबर माइट कम बैक इन। या बाबर आएगा तो सही अगली टेस्ट में वापस। किसकी जगह आएगा इमाम। ये? Surely इमाम। 100%। और कोई जवाब ही नहीं है। मैं I would actually have Shan open. मैं अब्दुल्ला को 3 पे ही रखूं। नहीं मैं अब्दुल्ला से ओपन कराऊं। अब्दुल्ला फजल मैं 3 से ना भी उससे नहीं मैं अब्दुल्ला फजल को ओपन करो, शान को 3 पे ले गया। यार अगर शान ने आकर खेलनी है ना, शॉटे मारनी, तो न्यू बॉल दे दो उसे। नहीं थर्ड फर्स्ट ड्रॉप पे कर ले। मैं कहने लगा था वो अभी बाद में बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। साउथ शकील बाहर जाएगा हैं 100%। मुझे इनकी मेंटालिटी नहीं यार, इमाम का बनता है जाना। मुझे इनकी मेंटालिटी पता है। साउथ शकील को तो आपको कॉन्फिडेंस है, हालांकि और अब्दुल्ला फजल ये यही करेंगे। आई विल से दिस, मैं मानता ही नहीं ये कुछ चेंज करेंगे ब्रो। नहीं एक चीज तो हाईलाइट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान वर इन कंप्लीट कंट्रोल एट द एंड ऑफ डे 2। दे हैड वन डे 2, ठीक है? डे 2 तो कंप्लीट पाकिस्तान at stumps of day 2 were 179 for 1. Yeah. अगले दिन आकर they started off well, they were 220 for 1.
Then from 220 for 1 they slipped to 230 for 5. कोलेस्पियां जो कि पाकिस्तान की तो मतलब वो है ना हेरिटेज है. I mean, they lost. ये है हमारा कल्चर. यही है हमारा कल्चर भाई. पाकिस्तान lost 4 wickets for 10 runs within the space of minutes, which would have been 5 if not for Taskin's no ball. वो Cousin Sahel भी उड़ गए थे. बिल्कुल यही कल्चर है आपका. How many times have we seen them collapse? इस टेस्ट मैच में देख लो. Yeah. अभी फिर लास्ट इनिंग्स में कोलैप्स. हाँ. अब 230 for 5 के बाद चलो, there was a really good counter-attacking partnership between Rizwan and Salman. 119 runs. Great. 386 all out. Should have been a lead for Pakistan, yet they conceded a lead of 27 runs and they gave away 37 extras in their first bowling innings. जिसमें से 20 byes, 9 no balls. Great counter-attacking innings by Rizwan and Salman Ali Agha, and I'll reiterate that point. क्या शॉट थी रिजवान की, क्या शॉट थी सलमान अली आगा की, दोनों इनिंग्स में दोनों की. Yeah, very very poor. सलमान के दोनों dismissals were identical. और रिजवान का पहला वाला पता नहीं क्यों वो आगे बढ़ के मारे. हालांकि अभी मार दिया एक पिछली बॉल भी मारा था. Exactly. एक दो बॉल पीछे. और उसके बाद फिर वही हरकत कर रहे हो. और फिर सेकंड इनिंग्स में तो कंप्लीटली एम्बैरेस्ड बाय नाहिद ब्रो. Embarrassed by it was embarrassing. Nahid. Coming to Salman first, I think he probably should have actually bowled a bit more. Yeah. But anyway, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. He got lucky man. He was gone for a duck in his first dig. वो तो तस्किन की नो बॉल हो गई. अब I did like the promotions though, especially in the fourth innings. I thought उसको ऊपर भेजना सही था. He came out to bat at 5 in the fourth innings and at 6 in the first. क्या करूं मैं? Or first नहीं second. Yeah. एक counter attacking knock तो उसका था. Him and Rizwan rescued Pakistan. मैं उनकी इनिंग्स पे, मुझे उनके डिसमिसल्स पे बहुत ज्यादा तप है. इनिंग्स तो बहुत अच्छी खेल रहे थे. फर्स्ट सेकंड इनिंग्स जो थी मैच की. And it must be said that Salman Ali Agha does continue to thrive in longer formats. वो उसके लिए सही है दोनों फॉर्मेट. बस T20 से दूर रखो. जो सऊद शकील को एडवाइस दी है वो आपको दूंगा. जो दहानी को दी थी वो इन दोनों को दी है. मगर कजन सैल ओडीआई के लिए भी जरूरी है. ओडीआई के लिए नहीं मैं सऊद शकील को भी T20 से हटा रहा हूं मैं. वनडे में अगर वो कुछ करके आ सकता है तो मुझे मसला नहीं है. अभी नहीं आ रहा. अफसोस इसलिए होता है क्योंकि देखो दोनों डिसमिसल्स अगर कजन साल के देखो ना, प्लेइंग अवे फ्रॉम हिज बॉडी, जीरो फीट मूव. हाँ, वहीं पे कैच दे दिया. आप you were driving so well on the offside, you were punching so well on the offside. Don't cut the ball if you're getting out. ठीक है, stick with the punches and the drives. और spin के खिलाफ आप maximize करो ना, वहां पे आप अच्छे हो. That's what you do really well. You use your feet to take down spin, you sweep, जो कि की इसने चीजें. But those identical dismissals completely killed it for me. Passing grade नहीं मिलता. हालांकि 58 of 94 and 26 of 39 isn't the worst effort in the world, but it's the dismissals. अच्छा, तुमने ग्रेड्स की बात की ना. सिर्फ 3 प्लेयर्स को पास कर रहा हूं मैं. उसके अंदर 2 डेब्यूटेंट्स और मोहम्मद अब्बास. बस और किसी को पास नहीं. हाँ वाकई अब्बास एंड द डेब्यूटेंट्स. दैट्स इट. एवरीवन एल्स फेल्स. कजन सैल, you could have got going in that fourth innings as well. आप अच्छा खेल रहे थे. But बस वही similar dismissal which really pissed me off, and वो it takes the sheen off the 50, right? Shaheen off the 50? नहीं. अच्छा. मगर वो 50 वाले टाइम पे भी यार मतलब My God. और रिजू तो यार मतलब कीपिंग असाइड, बिकॉज़ उस पे और क्या बात कर लें. कैच, ड्रॉप, स्टंपिंग, मिस्ड ऑल दोस बायज. पैथेटिक. I've never seen Rizwan be this poor behind the stumps. Never. And इतने अरसे बाद फर्स्ट इनिंग्स में लग रहा था कि रिजवान वापस आया यार. बैटिंग अच्छी खासी कर रहा था यार. This is the best I've seen him bat in a while. In a proper hot minute. ठीक है, Rizwan looked like the Rizwan of old Saadi. He was proactive against pace and spin. जो कटें और फ्लिकें मारना शुरू किए पेस को. कट पे कट, फ्लिक पे फ्लिक. He looked so comfortable playing those 2 shots, right? And then even he drove through the covers versus pace and spin. सारी शॉटें लग रही थी. सही. Reverse swept one. He was looking so good. I still can't get over his dismissal. Busy throughout. How frequently have we use the term busy with respect to Rizwan in recent times? No. अब आजकल तो busy रहा ही नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. Yeah, this was we a proper... used to talk about his business. Yeah, business. Business. Yeah. This was a proper counter-attack. In fact, it was a quicker counter-attack than Salman Ali Agha. हाँ, बहुत अच्छा खेल रहा था यार. And Rizwan needed this knock desperately because we've talked about it quite frequently that he's looked like a shadow of his former self. He doesn't look like the same guy anymore. It doesn't seem like he's enjoying his cricket anymore. He's not chirpy enough anymore. वो उस dismissal के बाद फिर वापस वही नजर आने got the soul sucked out of him or whatever. Very poor dismissal versus Taizul. पता नहीं क्या शॉट थी. ठीक है यार, आप थोड़ा you want to take the attack on cue or put pressure on the opposition. I'm for that. अभी मारी ये शॉट. अभी मत. ये नहीं था ना कि उससे पहले मारी नहीं थी.
इस तरह की हरकत तो T20 में नहीं करता. हाँ, यहाँ पे रिजवान was 59 of 79. I kid you not, he's bat slower in ODIs these days. वाकई 59 of 79 ये नहीं होता ODIs में. ये बाद में जाकर कैचअप कर जाता है. And even then वो 80 की स्ट्राइक रेट होती है. मुश्किलों से 80 आजकल नहीं कर रहा. ODIs में भी क्या 72 की स्ट्राइक रेट चल रही थी इसकी कुछ इस तरह. ऐसा ही कुछ था भाई. खैर 59 of 79 फिर अच्छा था. The 15 of 46 in the fourth dig was just, I mean the dismissal. यार डिसमिसल से पहले ही मैं ये क्रूपी यहाँ पे बैठा है, मैंने उसे बोला था he's a walking wicket bro. कुछ करा नहीं जा रहा था उससे. मैंने करा नहीं जा रहा था बोल दिया bro. करा नहीं जा रहा था बोल दिया उसने. I mean the nip backer from Naheed in which he just, you know, he left the ball, shoulders, arms. और फिर कीपिंग इतनी गंदी थी कि premeditated leave थी bro. Even if Rizwan had scored a 50 in the fourth innings, he would have gotten a failing grade just because of his wicket keeping. That's how bad he was behind the stumps in this game, which was shocking. I did not ever imagine कि रिजवान से इतनी गंदी परफॉर्मेंस में देख लूंगा behind the stumps. Consistently, गलती पे गलती, गलती पे गलती. कजन सहल तब गए थे कैच जब ड्रॉप हुआ. शुक्र है वो 3 लानते ही नहीं भेज दी जो मेहदी को भेज दी. वैसे कजन सहल ना बांग्लादेश वाले, you guys can completely take the piss out of him. बैंटर ही पड़ा, बैंटर से भरे पड़े मोमेंट्स हैं. पहले मेहदी वाला इंस्टेंस, अब ये जो बातें कर दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में. क्यों बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप अपनी बात करो. आप कह रहे हो वो ब्रेव नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता. आप क्या हो? पाकिस्तान टीम क्या है? क्या ये ब्रेव तो नहीं है. कहां से, मतलब इतनी दे आर द एल्टिमीडोज, द कॉर्नर्ड किटन्स. मैं इसलिए नहीं सही तरह बोल सक रहा क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ना ब्रो. मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाना है. लेकिन ये कहां से सोचते हैं भाई, पता नहीं. मतलब पहले थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन. कभी आईने में जाके देखो अपने आप को भाई हम क्या कर रहे हैं. सादी रियलिस्टिकली पाकिस्तान शुड हैव स्कोर्ड 550 इन द फर्स्ट इनिंग्स. ओए आराम से. या 220 फॉर 1 ब्रो. आपके बच्चे आपको स्कोर करके दे रहे हैं यार. वाकई. और कितने तेज स्कोरिंग रेट पे. मतलब when they started that first batting innings, they were going at 5 per over. And I was like, this is really fascinating. I am wondering if this is intentional. फिर एक हमारे हैं ट्विटर पे भाई, I think Nomi Pine enthusiast नाम है उनका. यार ये वैसे I like you, लेकिन हमारे नाम ना चोरी करो. नहीं करो. Make it mainstream. हमारा Nomi Pine, मैं Nomi Pine enthusiast हूँ यार. तुम कहाँ से हो गए? मैं अलाउ करता हूँ. तुम कौन होते हो अलाउ करने वाले? One half of the coiner of the name. Nomi Pine enthusiast हो तुम? हाँ. नहीं Nomi Pine है ना. Nomi Pine यूज कर लो. enthusiast तो मैं हूँ. ओ अच्छा ये बात कर रहा है वो. खैर नोमी पॉइंट enthusiastic बना दिया. enthusiastic बॉय ने बोला, या गर्ल भी हो सकती है, कोई पता नहीं. ठीक है. नोमी पॉइंट enthusiast ने बोला कि but we've seen this from Shan Ball. मैंने कहा not 5 runs per over. We haven't seen that. 4 runs per over. 4 तक. हाँ 5 was new. खैर वो they did slow down after that, but that was quite enterprising to watch. काफी तेज स्टार्ट लिया था. मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके बच्चों ने ये प्लेटफॉर्म सेट करके दिया आपको. अच्छा एक सीनियर को तो हम भूल ही गए हैं. नहीं उसको भूले रहने दो ब्रो. भूले रहने दे. उसको भी चांस मिला था बाय द वे. ही वाज ड्रॉप्ड बाय महमूद अल हसन जॉय इन द स्लिप्स ऑन 23 एंड ही देन दैट डिसमिसल ऑन 45 सीधी बॉल. फिर दूसरी इनिंग्स में तो वही बस खत्म आते सारी 2 रन. Bro, I don't want to see him in the test team, bro. क्या एवरेजिंग साउद ने किए हैं क्या 15 रन इस टेस्ट में. शान मसूद ने किए हैं 11 रन. इमाम 47. This is bad, man. Those 3 combined. What is 11 plus 15 plus 47? 26 plus 47 करो. 26 plus 47 में चलो वो पहले 73 runs. These 3 guys combined for 73 runs in this test match. And those were your senior most batters, barring Rizwan and Cousin Sal. मगर 3 तो थे ना वो seniors. क्या था ये? So ये तो criticism अब आएगा. Bro, मतलब 2023 में इस बॉय की 30.75 की एवरेज है. 2025 में 4 में खेला नहीं, 5 में 29.75 की एवरेज है. और अभी तो खैर एक टेस्ट मैच हुआ है, लेकिन 23 की 23.5 की एवरेज है. मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? और अवे फ्रॉम होम तो बहुत ही फजूल एवरेज होगी. मतलब देख ही लो तुम, नीचे लिखा ओवरऑल अवे फ्रॉम होम. हाँ उसी में आ जाता है. ओवरऑल अवे फ्रॉम होम 25.16. देयर यू गो मैन. 14 मैचेस, बैटिंग एवरेज लेस देन 26. आई मीन लेकिन होम में जरा 54.88 की है ना ब्रो. पिंडी शहर पिंडी. क्या करूं? नहीं वैसे कराची भी है शहर. कराची में भी रन्स मारे में आई थिंक इसने. यार अब क्या ही बात करें. और पाकिस्तान की बैटिंग की मुझे बताओ. मैं इमाम, शान, साउद, चलो साउथ को मैं फिर थोड़ी लंबी रोप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है अभी तक. यस ठीक है, डाउनफॉल आया, बहुत गंदा डाउनफॉल आया, लेकिन थोड़ी सी लंबी रोप वो ले जाते हैं ना. शान और इमाम में क्या किस तरह डिफेंड करूं यार? पता नहीं उसकी कैप्टनसी को कैसे डिफेंड करूं.
इस तरह के डिसीजंस हमने पहले भी कहा था कि यू लेट बैटर्स ऑफ द हुक और सॉरी यू लेट टीम्स ऑफ द हुक व्हेन यू हैव टू किल द इनिंग्स. आप देख लो तो ब्रो बहुत दूर की बात है. एक तरह से हमने देखा ये फर्स्ट बैटिंग इनिंग्स में बांग्लादेश की. You know, चलो शुरू में तो बांग्लादेश वर रोरिंग, right? The Tigers were roaring. Tigers, let's go Tigers. 201 for 2 थी बांग्लादेश. They were looking solid. उससे फिर वो they ended the day's play at 301 for 4 in complete command. Day 1 was Bangladesh, ठीक है. उसके बाद पाकिस्तान did really well. Start of day 2 they reduced Bangladesh to 384 for 9. फिर तस्किन नहीं आउट हो रहा था, तस्किन मारी जा रहा था, तस्किन के लग गए. ठीक है, लसन के तड़के. इट शुड हैव बीन व्हाट 390 ऑल आउट. बांग्लादेश स्कोर्ड 413. एंड में यार वो एक्स्ट्रास निकाल दो, ये 20 एक रन निकाल दो, 50-60 रन तो यही कम हो जाएंगे. चलो 50-60 नहीं तो कम से कम 30-40 रन तो हो जाएंगे ना. माय गॉड, राइट, लाइक दैट्स अ फेयर एस्टिमेट. हाँ बट क्या बंदा बात कर. आई मीन इफ यू आर चेसिंग 200 एज अपोज्ड टू 260, that does make a bit of a difference. That does make you a have difference. to be clinical. लेकिन do you think कि वो कर रहे होते अगर उनके इतने कम होती लीड तो ये भी तुम्हारी बात सही है. मगर पाकिस्तान were anything but clinical. They have been anything but clinical. Bro, you go for the jugular like Shanto did. Yes. Like Shanto did. You shan't not pass. Yes sir. यार उसकी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है. मैं शंटो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है यार. आ जाए. आज शंटो. Yeah. Shanto was the top scorer in this test. He was brilliant. No one scored more runs than the Bangladeshi skipper. 101 of 130 in his first dig, and then 87 of 150 in his second. 900 in the test match. 150 तो क्या 188 runs in total. Brilliant stuff. One of the most improved batters in test cricket. Yeah. I mean, शुरुआत कितनी गंदी थी. Then he peaks, then he loses a bit of form, and now we're seeing Shanto do well again. And Sadi, he was both brisk and authoritative in that first innings. बेशक. वो जो 100 मारा है. Bro, दूसरी में भी he was really good. He dominated Pakistan's bowlers. All those pull shots. Deserved player of the match. I mean, he was also clever enough to stand outside the crease to Mohammad Abbas. वो फिर रिजवान को आगे लेकर आए हैं. ठीक है, वो तो आराम से नीचे आ रहा था. और यही करेंगी टीमें अब्बास के खिलाफ. You're probably going to have to keep the keeper up. इंग्लैंड तो यही करेगी. कीपर फिर कोई परफॉर्म करे ना. खैर anyway, the way Nazmul Hossain Shanto pulled the ball in this test. Najmul. वो मेरे मैं कंफ्यूज करता रहूंगा. Z और J मेरे लिए अब एक ही अल्फाबेट है आज से. ठीक है, बेराम काजी हूं मैं. चल ठीक है काजू भाई. The main hallmark of Shanto's batting was all those pull shots. Pulled pace, pulled spin, फिर फ्लिकें मारना शुरू कर दी. अब उस हम पॉइंट पे आ गए जहां पे मैंने आप लोगों को बताना था कि मैं तब क्यों ना. बट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो शॉर्ट है तो पुल कर रहा है, फुल है तो फ्लिकें मार रहा है. हाँ, तो इस तरह भी कह सकते हैं ना. फ्लिकों में इतना कंट्रोल नहीं था बाय द वे. आप वहां पे एक बंदा खड़ा कर सकते थे. शादी बना दी है. शादी सीन और शीन 2 अल्फाबेट्स हैं मेरे ज़हन में. ये आपको कंफर्म कर देता हूं. एंड देन वो वही ड्राइव्स पास्ट मिड ऑन वर्सेस अब्बास एंड शाहीन. थ्रू द कवर्स भी मार रहा था. इन चीजों पे कट द बॉल. अभी ये आप सिर्फ शंतो का वर्ड है ना, ये सारों का लिखा हुआ है इसने. खैर ही कट द बॉल, ही स्लैप्ड द बॉल, ही यूज्ड. और नोमी पाइन को काफी जलील किया. बहुत ज्यादा. नोमी पाइन को खा गया था. नोमी पाइन को तो काफी लोगों ने वैसे. अच्छा तुम नोटिस करो कि बाकी दुनिया मोस्ट बैटर्स दे यूज देयर फीट वर्सेस स्पिनर्स टू गो बिग डाउन द ग्राउंड और ऑन द ऑन साइड. शंतो ऑफ साइड मारता है. वो बड़ी खूबसूरत शॉट मारता है. या इनसाइड आउट सी मारता है. नोमी पाइन को शंतो ने भी टेक डाउन किया और मुशफिकुर ने भी टेक डाउन किया. कजन सैल भी वैसे वो वाली शॉट मारता होता मगर वो बड़ी खूबसूरत शॉटें थी when he used his feet versus Nomi and then he swept him as well. मगर द बेस्ट शॉट. और इस शॉट का तो जिक्र बनता ही था. अच्छा कर लो यार. तुझे याद होगा वो छक्का स्ट्रेट 6 अब्बास को जो पड़ा है. I would go out on a limb and say that's the shot of the match for me. बहुत ही कुत्ता छक्का. अच्छा था. I mean, dominated Pakistan's bowlers and has he bagged the player of the match? He should. अभी बोला सुनता नहीं हूँ. जोन आउट हो जाता. मैं तुम्हें टाइम बताऊं क्या? 5:55. 15 मिनट में मुकाना है. ठीक है. 6:10 से आगे ये शो जा नहीं सकता. और अभी इतनी बातें करनी है. By the way, in that first innings, Mominul and Shanto set a record as well. It was the highest. Their partnership of 170 runs was the highest third wicket partnership for Bangladesh versus Pakistan in a test match. 170. इससे पहले थी अशरफुल एंड हबीबुल बशीर. Damn! Yeah, bro, वो पुराने जमाने के प्लेयर हो गए मैं. ये वही सीरीज होगी मुल्तान टेस्ट वाली. होगी और कोई नहीं हो सकती. वैसे उस सीरीज में हबीबुल बशीर पागल हो गया. हबीबुल बशीर अच्छा था. कप्तान था ब्रो उनका. वही था उस टाइम पे उनके पास. खैर और ये अशरफुल अभी आ रहा था और फिर चला गया.
खैर एक तरफ शंटो अगर डोमिनेट कर रहा था, दूसरी तरफ मोमिनुल ने बस ही शट अप शॉप. मोमिनुल को चेक किया फिर प्रॉपर नंबर 3 बेबी. Yeah man, I mean he's really dogged. Proper number 3. Grit personified. ऐसा ही है. ठीक है. 91 of 200, leeched, and then 56 of 120. Guys not even striking it at 50. Bro, नहीं चाहिए. टेस्ट है. लगे रहो. Did his job remarkably. Remarkably. He got his opportunities in the second innings. उसकी गलती. Yeah, dropped on 15 and 43 मगर उसकी गलती तो नहीं है. पकड़ लो ना कैच. But my word Sadi, all those runs square the wicket on the outside. जिसमें से चलो वो जो nudges और cover drives वो तो अपनी जगह, जो cuts और cheeky upper cuts थे ना. Cheeky बहुत खूबसूरत मारता है. He's a short guy, low center of gravity. The way he was uppercutting the ball consistently. जलीली कर दिया करके. In fact, most of his runs came in that third man region. सिर्फ एक डिंक डाउन द ग्राउंड थी और कुछ फ्लिकिंग और ग्लांसें थी लेग साइड पे. और फिर स्पिन को उसने भी 2-3 दफा टेक डाउन किया. Used his feet and all. जितना मुशफिकुर रहीम ने भी किया. बिल्कुल. मुशफिकुर रहीम पे आ जाओ आप. Oh, by the way, उसकी शॉटें भी बता दो दुनिया को. Big shout out to Mominul Haq, who has completed 5,000 runs in Test cricket. Well done, Mominul. Yes sir. और मुशफिकुर रहीम averaging 40 plus. Averaging 38 I want to say. अब 39 शायद हो गई. अब होगी नहीं, कुछ था कोई पीरियड था जहां पे ये 40 प्लस. Start of his career might even be 50 plus because he was scoring a lot of hundreds back then. अब 100 नहीं ज्यादा मार रहा, but he scored twin 50s in this test, right? 34 bro doesn't look like. बिल्कुल भी लगता. ओ बीच में फटा हो गया था सादी. फटा. मोहम्मद अब्बास और मोमिनुल के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स हो गई थी. I've never seen Abbas this riled up. हालांकि मोमिनुल तो शरीफ सा आदमी, उसने तो आगे से कुछ बोलना भी नहीं है. Right? यार इस पिछले साल 44.7 की एवरेज थी इसकी. अच्छा. मैं वही मुझे याद आ रहा था कि किसी उसमें थी उसकी एवरेज 40 प्लस. अभी है इसकी 38.21. Which isn't bad bro. नहीं solid test match for him. 78 test matches for him as well. He was Bangladesh's second best batter and the second best batter by runs in this test, right? उससे ज्यादा नहीं बनाए अब्दुल्ला फजल ने या अजान ने उससे ज्यादा नहीं बनाए. He ended up with what 147 runs. Yeah, that was the second most. Anyway, मुशफिकुर was good as well. मुशफिकुर again kind of dogged by him as well. 71 of 179 and then 22 of 37. Man is a proper journeyman, a legend. Proper. Mushfiqur Rahim debuted in Test cricket back in 2005. Yeah. It's been 21 years. It's the second longest career by number of years for an Asian cricketer. By the by, आप में से कुछ ऐसे लोग हो गए यार, teenagers जो weren't born when Mushfiqur started his career. Yeah. No one has, or in the current circuit, no one has been playing longer than Mushfiqur Rahim. It's crazy. He's just turned 39 years of age, so he's no young gun, no spring chicken by any means. And he's also the top run scorer for Bangladesh in international cricket. Yes, sir. He's also the only Bangladesh cricketer to play 100 plus test matches. 101 test हो गए अब उसके. It's crazy, bro. He still continues to do well, बल्कि recent years में ज़्यादा बेहतर हो गया. Yeah. Drives on the offside. ना कीपिंग भी नहीं करता ना. पता है आम तौर पे ना, if you as a wicket keeper want to extend your career, you have to give away the gloves. Baz McCullum, Sangha, yes sir. There are plenty of other guys as well जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे. ठीक है. So anyway, all the drives on the offside, the cut and the pull versus pace, Mushfiqur was dominating. Third man पे हसन अली खिलाफ कुछ ज्यादा ही चौके निकल गए थे. वो कुछ लकी भी थे. I am not gonna lie. But नोमी पॉइंट को तो इसने भी थोड़ा जलील किया ब्रो. वही मैं कह रहा था. एक शंतो ने और एक Mushfiqur ne, they took down. Cover drive, sweep, slog sweep, use of feet, everything. I mean, Mushfiqur Rahim is someone who I genuinely love a lot because I love how he's a hustler. He's a hustler and जिस तरह का इतनी longevity जब आ जाती है ना करियर में और जब आप focused होते हो. Now he's focused on Test cricket. He's averaging 39 in Test cricket. Brilliant. What a career. Yeah, bro. Very good career. For the vast majority of it, he was keeping wicket. तो फिर तो 39 की average और भी अच्छी लगती है. I mean, he deserves all the flowers and he scored the winning runs when Bangladesh swept the series, right? It was either him or Shakib, मुझे याद नहीं है. क्रीज पे ये दोनों थे. मुशफिकुर था. क्रीज पे तो यही दोनों थे और फिर मुशफिकुर भी excited काफी हो रहा था. जंपे उसने भी मारी है. मुझे बड़ा मजा आता है यार Bangladesh cricketers को animated देखते हुए. They're really nice, lovely bunch. Yes. खैर ये तो हो गए हमारे बांग्लादेशी भाई. हमारे दो प्लेयर्स की बात रहेगी यार. वो दोनों परफॉर्मर्स थे. वो दोनों थे बच्चे. अजान से स्टार्ट करें. अजान से स्टार्ट कर लो यार. वाह. I mean, Azan Awais became the 14th Pakistani to score a ton on Test match debut. वो अलग बात है कि out of all those debutants, only Yunus Khan, Javed Miandad, Salim Malik and चलो तौफीक उमर. They've had good careers. बाकी तो किसी का career चले नहीं, which is kind of a worrying sign. अभी last कामी जी थे. कामी जी गायब है. कामी जी होते तो वो वैसे नंबर 4 पे खेलते, मगर एक तरह से ठीक ही हो गया अब्दुल्ला, वरना खेलता मत. इस तरह खेल गया अब्दुल्ला फजल. बेचारे कामी जी के साथ तो ज्यादा है ना. कामी जी के साथ
आउट एंड आउट जाती है. He did nothing wrong, or at least चलो we all knew कि he didn't have that higher ceiling. मगर 4 पे तो अभी वो उसका चांस थोड़ा बनता था. एटलीस्ट जब बाबर इंजर्ड हो तब तो बनता था. बट कमिंग बैक टू अजान अवैस, कितनों के साथ ज्यादती करोगे? होपफुली इस बच्चे के साथ, इन दोनों बच्चों के साथ ज्यादती ना कर दो. I mean, अजान तो मुझे बहुत ही पसंद आया. We knew the pedigree in terms of his domestic numbers, by the way. In 33 first-class matches, Azan Awais has scored 10 tons, average 48 plus, which is crazy for an opener, by the way. याद रखोगे, नई बॉल को फेस कर रहा है. ओपनर के लिए 40 की एवरेज बड़ी सॉलिड है. उसकी 48 की डोमेस्टिक में चल रही थी. And over here, in his maiden outing in a Pakistan shirt, टेस्ट डेब्यू छोड़ो, पर पाकिस्तान के लिए नहीं खेला. He goes out there and scores a ton, and I mean, after getting hit in the head, नाहिद की बॉल सर पे लगी थी ब्रो. हेलमेट चेंज करना पड़ गया था. He said later that he was zoned out for like 5 minutes, and then he was like, I need to get serious. जो कि by the way, वो कंकशन सब वाले कर क्या रहे थे फिर? उसने बेचारे ने सोचा होगा यार मेरा ये मौका ही ना खत्म हो जाए. बेचारा. हाँ, मैं बस झूठ बोल लेता हूँ कि हाँ 3 उंगलियां. मुझे तो क्लिफी डिकन की उंगलियां भी नहीं नजर आ रही. एक पॉइंट पे नोमी पॉइंट की सर पे बॉल लगी. मैंने सोचा कि यार ले आओ साजिद को, कर दो कंकशन साहब. कसम से मैंने सोचा. क्या घटिया बंदे हो यार. नहीं मतलब उस पॉइंट पे पता चल गया था कि नहीं हो नोमी पॉइंट एंथुसियास्ट. देख लिया नोमी पॉइंट एंथुसियास्ट तुम और वो ट्विटर वाला मैं या गर्ल आओ ना तुम. या बट बॉय आफ्टर गेटिंग हिट इन द हेड, वो भी नाहिद की बॉलिंग पे व्हिच इज रैपिड. ठीक है. ही देन एट अ लेटर स्टेज पुल्ड नाहिद राना फॉर बैक टू बैक बाउंड्रीज. दो पुल थी उसके अंदर. तीनों पुल थी ना. वो जो फाइन लेग थी वो भी पुल ही बोलोगे. नहीं, तीसरी वाली पुल थोड़ी थी यार. वो मोर ऑफ अ फ्लेक. ये पुल थोड़ी होती. 2 पुलें थी उसके अंदर. I like the way he pulls the ball. He looks quite assured in the shot. ठीक है. वो ये he's not all over the place. Not at all. बिल्कुल भी. वो इतना compact होता है. He knows his zones. Very nice player. Yeah, I mean him being compact is one big standout feature, and then it's the split grip. वो देखा तूने? हाथ दूर है. Yeah. And you know he plays the ball extremely late, as if he's just reacting to the ball. Very late. And that might help him in away conditions as well. It's too soon to say anything, but he had already proven his mettle at domestic level. आकर उसने सिर्फ reassure किया. He's only reaffirmed his genius, Azan Awais, and that's what I love to see. And boy, all those scintillating drives, Sadi. Drives were खूबसूरत. तरह की. The square drive, bro. Wow. The square drive, the cover drive, then that on drive. वो शायद सबसे खूबसूरत थी. On drive बहुत प्यारी है. बहुत प्यारी on drive थी. वहां पे स्प्लिट ग्रिप पे एनालिसिस हुआ टीवी के ऊपर भी, ब्रॉडकास्ट पे. And then I loved the fact कि after getting hit in the head, he pulled for Nahed for 3 on the bounce. The lady. Yeah. ठीक है ना. जिगरा. The grit. Yeah. All those shots. छोटा सा साइज में, लेकिन the confidence on this guy to do this on your debut when your partners on the other hand aren't doing so much, when the seniors aren't performing. तो इसकी जितनी तारीफ की जाए यार कम है यार. I swear to God. A-star दे दो इसे. हाँ, A-star ही बनता है अजान अवैस का. I mean, look, to think that you know he's only 21 years of age. 21. He's got the bulk of his career ahead of him. Father time is definitely on his side. Focus on red ball. या इसको सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल ही खिलाओ, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इसका बड़ा स्कोप है यहाँ पे. एंड यू नो you're saying he showed grit. I thought he was quite brisk as well. तेज खेल रहा था ब्रो. नहीं, ऐसे ब्रो आप पहला मैच खेल रहे हो, आपको सर पे लगी है, उसके बाद आपने उस 3 चौके भी मारे, और उसके साथ जब शार्प स्टॉप करनी थी वो भी किए, ड्राइवे मारनी थी वो भी मारी. लुक्ड कंफर्टेबल. वेरी कंफर्टेबल. चांसलेस. या और भी थी यार. ही फ्लिक्ड द बॉल, कट स्पिन, यूज्ड हिज फीट वर्सेस स्पिन. हालांकि यूज्ड हिज फीट वर्सेस स्पिन पे थोड़ा डॉजी लग रहा था. कुछ भी नहीं बोल रहा. अभी यंग है. ही इज गोइंग टू डेवलप फर्दर. I really hope they do not waste him or wreck him. Herrera के साथ भी हल्की सी तुम ये कह सकते हो ज्यादती हुई. बहुत ज्यादा ज्यादती. No one was scoring runs on those surfaces versus the West Indies. एक मैच खेल के कौन निकालता है? Those rank turners in Multan were proper, you know, hell holes for batters. वो काशिफ अली कहाँ गया? एक मैच जिसे खिलाया था, पता नहीं, बस वो एकदम याद आया मुझे. हाँ, मैं तो भूल चुका था ब्रो. I forgot that guy existed. वो बेचारा बुरा नहीं था इतना. ठीक था. इतना बुरा नहीं था वो. उसको कौन सी जिस पे खिला रहे थे? ठीक कर रहा था वहां पे. खैर, कट दिया उसे भी. I think the maturity that Azan showed for someone on test debut, वो सीनियर से नजर नहीं आई हमें. Such a good head on this kid's shoulders. दोनों बच्चे. अब्दुल्ला भी. एक और बात याद आई. No exaggerated celebration. Nothing. आराम से सुकून से calm. And he even said that I'm a calm guy and this and that. Strung up 200 plus run partnerships. 106 run partnership with Imam and 104 run partnership with Abdullah Fazal. How delightful was it, or how refreshing was it, Sadi, that the two young guns, the two debutants, saw of the day, क्लोज ऑफ प्ले पे दोनों खड़े हुए थे. और हम यही उस वक्त व्हाट्सएप पे भी ये बातें कर रहे थे, बस अब दिन निकाल लो, आउट नहीं होना. और क्या कमाल. और फिर लेफ्टी है, लेफ्टूज दोनों. मुझे दूसरा भी बहुत पसंद है. तुम थोड़ी सी बातें कर. अच्छा, तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं. बातें कर रहे हैं, बट अजान को
खत्म करने से पहले ये मैं बता दूं यार कि I really hope that this is the first of many, and I really feel that this might be because the domestic record also checks out. And then he was livid with himself when he got out. Yeah. So 103 of 165, brilliant. दूसरी में 15 रन बनाए उसने, ठीक लग रहा था, Yeah, ठीक लग लेकिन रहा वो था। शॉट थोड़ी सी गंदी थी। खैर। कोई मसला नहीं, मगर कोई मसला the नहीं। fact that he was livid with his dismissal, I love that because he played away from his body twice. Yeah. एक पे कतरी पे 4 हुए और फिर ही आउट हो गया। Yeah. तो इसको तब चढ़ी अपने ऊपर because he could have scored a daddy 100 and he recognized that. I like this sort of attitude. Put a prize On your wicket. prize बना दी मैंने, put a price on your wicket. टेस्ट क्रिकेट में तो रखो ना प्राइस भाई, unless you are a number 5 slogger like Head और पंत और ब्रुकिया, जो कि पाकिस्तान पे तो बंदा ही नहीं है वो वाला। मैं वही सोच रहा था पाकिस्तान में कौन बोलेंगे। रिजवान और सलमान ही काउंटर अटैक करेंगे। नहीं, उनकी बहुत बड़ी प्राइस है प्रो विकेट पे, वो आउट हो जाते कुछ। शान है आपका वो बंदा जिसने 11 रन बनाए टेस्ट में। शान बाय द वे आई डिड चेक साथी, स्टिल एवरेजेस 30+ इन टेस्ट क्रिकेट, जस्ट बाय विस्केट, जस्ट। अगले मैच में वो भी जा सकती है यार। खैर, Azan Awais was and you know he might have a higher ceiling than Abdullah Fazal, but he didn't score as many runs as Abdullah Fazal in this test. Yeah, Abdullah Fazal was really good. Abdullah didn't score a ton, but he scored the most runs for Pakistan in this test. 60 of 120 in his first leg and 66 of 113 in the second. बल्कि fourth innings में तो वो बेस्ट बैटर था, आराम से, easily, आराम से। हाँ। और पता है वो अब सादी आपको बताएगा स्टोरी। मैं नहीं बता रहा यार कुछ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। Yeah. 3 मिनट है तुम्हारे पास। Abdullah got slightly lucky, आप कह सकते हो, dropped on 28 by Shadban Islam, ठीक है। There were a few edges in the innings. कोई मसला नहीं, शुरू में लग रहा था। I think I can count at least 3 edges जो slips के थ्रू गई हैं। तुम ये इसके नुक्स निकालोगे क्योंकि तुम्हें शुरू में वो जिटरी लग रहा था। मुझे लग रहा था हाँ, जिटरी, ठीक मैं है। कह रहा था यार बच्चे को थोड़ा सा टाइम दो, नर्व्स होंगे। And उसके बाद देखे क्या किए। हाँ, and let's acknowledge the fact that this is a guy in form. T20 वाले नेशनल T20 में टॉप रन स्कोरर था शायद। अब मुझे टॉप रन स्कोरर नहीं पता, ही स्कोर्ड मेनी रन्स। Batter- PSL में नहीं अच्छा था। Yeah, PSL में अच्छा नहीं था, मगर वो उसकी पोजीशंस भी ऑफ थी। I think he was batter of the tournament in the national T20, but that doesn't matter because he came into this innings, this debut test, after a string of domestic success. He was really good in top the scorer in the Qatar, recent yeah. President's Trophy, all of that Yeah. stuff, ठीक है। And शुरू में he looked very jittery. He was biding his time. और तुम उसे स्पेस भी नहीं दे रहे थे। मैं नहीं दे टाइम रहा था। स्पेस नहीं दे रहे मैं और साथ ही बात करते व्हाट्सएप पे, मैंने कहा यार ये तो मुझे डरा हुआ लग रहा है, बहुत जिटर्स हैं, बहुत नर्वी लग रहा है। टाइम तो दे दो बच्चों Yeah, को। but चलो, credit जितना है। टाइम तुमने हारिस रऊफ को दिया इसको भी दे दो। टाइम की बड़ी अच्छी बात की थी मजहर भाई ने कॉम्स पे, पता नहीं कोई फास्ट बॉलिंग पे की थी कि तुमने कोई ट्वीट भी फास्ट बॉलिंग डजंट गिव यू टाइम, पता नहीं फॉर व्हाट। ये तुम प्लीज ढूंढ लो, क्योंकि व्हेन आई हर्ड दैट आई वाज लाइक व्हाट, आई एम सॉरी व्हाट, फक, दैट डजंट इवन मेक सेंस। ये तुमने बहुत फनी tweet की थी। थी। Yeah, probably ChatGPT'd something and thought he'd say this on comms. एक तो तुम्हारी ट्वीटें इतनी ज्यादा होती हैं ना, मैं कहां से ढूंढूं। Yeah. खैर, 18 बॉलें सादी। He was, you know, not off the mark for 18 balls. Hadn't troubled the scorers. और फिर इसने एक चौका मारा जिस पे सादी के मुझे बड़े मैसेज आए। एक एरियल कट था for 4, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत, ऑफ द बैक फुट, अमेजिंग शॉट। वो आ गया मेरे पास। हाँ। रॉ पेस रिमूव्स मोर टाइम देन चॉइस। ठीक हो गया। I would say it removes a lot of choice. You really need to know कि अच्छा मेरे पास ये 3 शॉट हैं जो मैं रॉ पेस से मार सकता हूँ। Removes more time than choice maybe. Because you don't have that much time to react. If anything, it removes a lot of choice. Right? And time is ये था क्या? It removes lesser time. It's raw pace. उल्टे। Removes more time ना from तुम दूसरे पर्सपेक्टिव से हाँ। सोचो, बैटर की पर्सपेक्टिव मगर से। चॉइस तो कम ही कर रहे हैं। चॉइस भी, टाइम भी, सब कुछ रिमूव सब कर रहे हैं। कुछ। ये बात क्या थी? I don't know ये बात क्या थी। I think शायद कोई उनका होगा बंगाली में फ्रेज शायद उसको ट्रांसलेट किया। I don't know. I like I said, I don't want to be mean, but the commentary was really dog shit in this game. उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। I don't want to be mean. It It's dog was- shit, bro. मतलब इससे बेहतर है आमिर सोहेली ला दो, वो कोई बकवास बातें कर देगा। तुम्हारे लिए बेहतर है ब्रो, वरना वो टेस्ट मैच शायद मैं ना देख सकूं। खैर, जब जैसे ही मारा ना अब्दुल्ला फजल ने दैट एरियल कट, सादी के मुझे मैसेजेस आने लग गए। मैं ठीक है, टाइम दिया करो यार। हाँ, 18 डॉट्स के बाद आया। बाद में इन द सेकंड डे देयर वाज एन अपर कट एज वेल। ओह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। Yeah. ठीक है, आई लव दैट। रियली गुड कटिंग स्पिन। आई थिंक दैट्स अ गुड शॉट ही हाँ, हैज। हाँ। और स्पिन के खिलाफ ही यूजेस हिज फीट। Uses his feet, मैं वही बोलने लगा Yeah. था। Went down the ground He loves multiple to, times. Yeah, he loves to take down spin and I like that. Yeah. That is useful for at least Asian test matches. हाँ, वो आउट भी उस तरह हो गया unfortunately, मसला but नहीं, कोई कोई मसला मसला नहीं। नहीं, ठीक है, but leg side पे I saw a lot of flicks, a lot of glances, a lot of whips.
पुल थोड़ी वो जमीनी पुल है, कोई मसला नहीं, वो जो नहीं नीचे इस मैं तरह तो ऊपर कुछ से नीचे कहने ही आती। नहीं वाला इन दोनों को। हाँ नहीं मुझे बड़े पसंद आए हैं, मुझे अजान थोड़ा ज्यादा पसंद आया, I'll be honest। यार डिफरेंट रोल्स, Yeah। मैं आई ओपन विद देम बोथ। और कवर ड्राइव जब मारता है ना ये बच्चा, एटलीस्ट इस मैच में जब मारी है, थोड़ी ऑन द अप है, could be found out, but square drive and the drive past mid off was great। मैं तो दोनों को कंपेयर भी नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा इन दोनों को खिलाओ अब। हाँ, इनको अब दो अब रन, एक्सटेंडेड रन मिलना चाहिए दोनों को, because they've shown so much resilience and talent and execution in the first They test। were better than your senior players. They were the shining light along with Mohammad Abbas of Pakistan in this test match। बहुत मजा कराया, ठीक है। I have high hopes now। अजान से तो हमें पहले भी थोड़ी थी, हमें पता था कि कभी ना कभी आ जाएगा। फजल से एक्चुअली मैं बताऊं, इन दोनों बच्चों ने ना मेरी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड की हैं। लेफ्टूज, हाँ, मैं कह रहा था कि शायद अच्छा चलो अजान पे मुझे ज्यादा ट्रस्ट था कि कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन मैं इस तरह की इनिंग्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। इतना अच्छा खेलेगा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और दोनों, हाँ, फॉर वन देयर वाज अ मेडन क्या कहेंगे, a test 100 in his maiden innings for और Pakistan। दूसरे ने twin 50s, Twin 60s, twin 60s, yeah, twin 6-2s, 6-2s, left 2s and 6-2s। खैर दूसरे के तो कोई 60 नहीं है, यार but इसके दो है ना। either way, loved what we saw from the kids। I think that is where we should probably leave this conversation, क्योंकि वही एक अच्छी स्टोरी है, बाकी तो बस जलील ही हाँ, है। और पता है क्या करना चाहिए, बच्चों को ले आओ यार। Also, honestly, Don't care। you had in theory 76 overs to chase down 268। हो जाता है ये, ऐसी बात नहीं है। बहुत आसानी से होता है मेरा, मतलब आज के लिए क्रिकेट में दिस इज नॉट एन इम्पॉसिबल टारगेट। इफ एनीथिंग बांग्लादेश dangled the carrot, they gave you a chance। नहीं ऑनेस्टली उस वक्त पाकिस्तान के पास ज्यादा चांस था। हाँ, 268 कुछ भी नहीं है 72 ओवर्स जब में। अब्दुल्ला फजल और कजन सहल की पार्टनरशिप चल रही थी और ये टी ब्रेक हुई है, गेम वाज इवन स्टीवंस। एट दैट मोमेंट व्हाट 40-50 ओवर्स में आपको 150 और रन चाहिए थे। आराम हो से, सकता था। आराम से मगर होता आते था। सारी खड़का गया ना वो, ठक ठक ठक। और वो बेचारा अब्दुल्ला फजल, द ह्यूमिडिटी एंड हीट काइंड गॉट टू हिम। हाँ, थोड़ा सा वो थोड़ा लग रहा था। अब अगेन बच्चा है, इन पे काम करो यार, इनको जाया मत कर देना। Let's end this podcast just by talking about the next test match। Any changes that you would make for Bangladesh? For Bangladesh, Shoriful for Abidot। हाँ वही है, बस यही है, Shoriful for Abidot। Oh, तंजीद for one of those। महमूदुल हसन जॉय ही जाएगा। Joy। शादमान at least has some performances versus Pakistan in Pakistan। जॉय जा रहा है। या जॉय को निकालो और तंजीद को लाओ, को और तंजीद ने शुरू में ही उड़ा देना इनको। पाकिस्तान के लिए चेंजेस काश मैं बहुत ज्यादा कर सकता। बट खुरम फॉर शाहीन, खुरम फॉर शाहीन, साजिद फॉर नोमी पायन एंड बाबर फॉर इमाम। या वी वुड चक इमाम आउट फॉर बाबर। मगर साउथ की मुझे बात कुछ ठीक लग रही है, इन लोगों ने साउथ कुछ साउथ या अब्दुल्ला को निकाल रहे हैं, मैं बता रहा हूं। मुझे इनकी मेंटालिटी पता। आई वुड ओपन विद शान, आई वुडंट टच अब्दुल्ला फजल। 3 पे आए रन, 3 पे खेलो फिर से। अभी इतनी जल्दी रोल नहीं बदलना चाह रहा मैं उसका। मैं तो कहता हूं उसको ओपनर पे ले आओ, बस चुप करो यार। तुम्हें फ्यूचर में भी तो एक नंबर 3 ग्रूम करना है। शान तो जा रहा है, नहीं तो अब 3 के लिए बंदा ढूंढो, अब्दुल्ला और अजान से ओपन करो। 3 के लिए भी ओपनर ही चाहिए, यू नो दैट। कौन है? शफीक नहीं ना, हुरैरा ऑफ फॉर्म। एक अच्छी चीज की वजह सिलेक्टर्स ने, एक दाद दूंगा, दे माइट हैव नॉट पिक्ड एन एनफोर्सर सॉर्ट ऑफ फास्ट बॉलर, बट दे डिड गिव क्रेडिट टू और डोमेस्टिक को इज्जत दी है। 2 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को लाए हैं, एन ऑन फॉर्म गाय एंड अ गाय हु हैड डन इट फॉर 33 गेम्स इन फर्स्ट क्लास। गाजी गौरी फॉर रिजवान? नहीं, नॉट येट। आई डोंट नो ब्रो कि कब तक। A lot of people are saying that। कब तक नॉट येट? ये भी अच्छा दिखा सवाल देता, है। पिंडीज में दिखा देता। रिजवान इज वो तो एनवायरनमेंट डिफरेंट था। I really am sad that Rizwan doesn't average 14 tests anymore, क्योंकि मैं बड़े फखर से ये वाला stat बताता होता था। फखर जमान? Not Fakhar Zaman, but that is kind of tragic, right? Because Rizwan is that quality of player. Bro, I don't know, bro. He doesn't know. सादी बेचारा ना मैं थोड़ा सा ज्यादा लिस्टलेस हो गया। क्या या तो कोई चेंजेस लेके आओ ना, या तो कोई होप दो कि यार हम सब कुछ स्क्रैप करें और नई टीम बना रहे, या फिर इंसान के बच्चे बनो। पीएसएल में भी मैंने रिजवान को देख लिया था यार, पिंडीज में क्या कर रहा था। ये वाला एनवायरनमेंट तो नहीं था ना, डिफरेंट एनवायरनमेंट। और सिंपल सी बात है यार, इस तरह की कीपिंग नहीं होती यार। रिजवान की कीपिंग तो चलो, दैट इज अ बिग ब्लंडर। वही तो मसला है, मुझे बैटिंग से ज्यादा मसला वो है। मैंने शुरू में फ्लॉ कहा था, द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर वाज ब्लंडर, अब याद आया मुझे। बट पता है, शान एंड साउथ दे गिव अवे द एडवांटेज। शान की दोनों डिसमिसल्स पे तब चढ़ी थी मुझे। तस्किन करा रहा है आउटसाइड ऑफ स्टंप। यार तुम तस्किन की छोड़ दो, बाद में शायद शॉटें तुम्हारी लग जाए, अभी तस्किन को छोड़ दो। नहीं छोड़ा। फिर इमाम भी हुई चुच। इमाम की तो चुच। खैर
कब से इमाम सॉल्व तो नहीं किए ना। ओह खरोटे आ गए, नंगियाल खरोटेज आ गए हैं। शान ने भी नहीं सॉल्व किए, वो इमाम ने भी नहीं किए, रिजवान पता नहीं कितने शॉटे मार रहे हैं। Also खुर्रम शहजाद hasn't done much wrong for him खुर्रम not तो to खेल play, रहा तो वो तो पक्का खेलेगा। I think वो शाहीन की जगह आ ही जाएगा। आ ही जाना चाहिए। शाहीन अब कैसे 2 बैक टू बैक मैचेस Yeah. खेले यार इस पेस के साथ। Tough start for सरफराज, उमर गुल, असद शफीक। या ये भी कहना पड़ेगा। सो नाउ उनके ऊपर भी प्रेशर है। Things do not look good. सबके ऊपर प्रेशर है। बस ये मैच सिलेट से मूव कर दें जहां पे बारिश नहीं हो रही, ताकि हमें देखने को मिल जाए। और फिर 2-0 भी हो जाए। या 2-0 हो ही जाएगा मुझे लगता है। या बट खैर आई वुड लव टू सी पाकिस्तान फाइट बैक एंड मेक दिस 1-1 जस्ट टू कीप थिंग्स दिखाओ इंटरेस्टिंग। ना थोड़ी दिलेरी, जिगरा, कुछ क्रिकेट दिखाओ यार। Just show us some fight. Don't be losing test matches by over 100 runs, right? and asking the opposition team to be Bat brave. first. Oh, be brave and for asking them to bat first after winning the toss. जबकि आपको पता है कि यार आपसे how frequently have these green tops been deceptive? Just by the way, first innings में जितना स्कोर करना है कर लो, थर्ड और फोर्थ में तो नहीं होता आपसे। And Shan, I mean I like Shan the human being, but hindsight is 2020 मैंने बहुत दफा सुन लिया। और वो यही कहता है हमेशा। मतलब 11 losses. 11 losses. The toss is a big blunder, bro. Well, it's a huge blunder. Your bowling changes were blunders. Field placements were blunders. बहुत ज़्यादा blunders है यार। Absolutely. Batting was a blunder. Yeah. That's about it. That is तुम्हारे about पास it. टाइम भी कम है। Time to come है, मगर this was an important show क्योंकि अब I feel a lot lighter. And I don't, bro. अभी मैं ये off camera ज़रा और light हूँगा। But once again, man, what a display of cricket by Bangladesh. Tigers, lovely stuff. Let's go Tigers. I genuinely love watching that team play. और जितने हमारे fans हैं, viewers and listeners of Bangladesh, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो यार। And उन्होंने जो पिछले साल 1.5 साल से अपनी पूरी चेंज की है ना क्रिकेट, with a focus on their coaching staff, with pitch curators, एक उन्होंने टेम्पलेट सेट किया कि हमने करना क्या है। Yeah. वो अब फ्रूट्स लेके आ रहे हैं बिल्कुल यार। Fruits of that labor they are enjoying and they are off on a correct track for the first time. For the first time. वो भी पहले गलती करते आ रहे हैं। वो उनकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम इस तरह का लग रहा है कि वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं। बिल्कुल। They've got a better team than Pakistan, 100%, no doubt about that. Asian conditions में 100% हाँ, and outside of Asia we don't know. तो वो पॉइंट ही नहीं रहता ना। हाँ। कुछ लोग कहेंगे ना कि नहीं हर जगह, मगर genuinely don't know outside of Asia. फिलहाल बांग्लादेश is better than Pakistan And in the Test cricket. World And- Test Championship हाँ, point table it reflects that. हाँ, और maybe in T20s as well. Yeah. I'm not too sure about ODI नहीं, cricket, वो जब आएगी तो आएगी। I don't know bro, में- उनका टेम्पलेट फिर बेहतर है। Template फिर बेहतर है, मगर T20s में Pakistan ahead Bangladesh. ODIs में I can't say that. Are you sure about that? No, I'm not sure about anything with respect to Pakistan cricket. I swear to God, उनके ओपनर्स हमारे ओपनर से ज्यादा बेहतर हैं। तंजीद टाइप चीज तो है उनके पास। नाहिद भी है उनके पास, हमारे पास क्या है यार? हाँ। हारिस रऊफ नहीं है ना। हारिस Moin Forcer। कर दूं बंद, अब खत्म कर वो दें। कहा यार मैं निकलूं यहाँ से। ओए बहुत देर होगी। Yeah. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर। उसके अलावा Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, जहां जाए वहां पे जाके सुन ले। जानिए उसे प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। बिराम के पीछे ये पोस्टर लगे हैं। बिराम खरीद ले जाकर पेस स्पेस यार, नोमी पायन, इम्मी के। बाकी यार अपना ख्याल रखें। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अ बोनस पॉडकास्ट। शायद है वो, शायद है ना। कल नहीं कर रहे, अभी देखते हैं ना अच्छा, यार, चलो। मेरे 100 और काम होते हैं। उसके 100 और काम है, शायद बोनस पॉडकास्ट मिले, मगर नेक्स्ट टेस्ट भी आपको रिव्यू मिल जाएगा। तब तक ख्याल रखें अपना। टेक केयर, बाय बाय गाइस। बॉय गैजा सी यू लाइक। और 100 काम है भाई, तुम्हें देर होगी, भागो। अभी भी तब चढ़ी हुई नसो। नस रहा हूं मैं, नस रहा हूं।